थे और ये फर्स्ट टाइम था जब किसी मूवी के लिए इतना डिटेल में क्रिएचर वर्क किया गया था एंड इसके लिए आईएलएम को उनका 13th ऑस्कर मिला और यहीं से अपना टॉपिक भी शुरू होता है क्रिएचर इफेक्ट्स। सो हेलो एवरीवन, I hope you guys are healthy and safe. My name is Darshan Jain and I am currently working in Frame Store. And thanks a lot, Arena, for giving me this opportunity to share my experience with you guys. And thanks a lot to you guys for participating in this. And before we start, I want to tell you guys the format of the session. So, सबसे पहले, like I'll share you guys like how my journey of creature effects, and then we will go in definition and purpose of creature effects. Then we will go on evolution of creature effects, like how creature effects started and how it evaluate, and then we will go through the workflow of creature effects, and then we will have a Q&A session. So first thing first, the video and the images I have used on making this presentation is not all mine, and it is only for educational purpose. Now let's begin the topic, my journey to creature effects. So like when I was growing up, I really didn't have any idea कि करना क्या है, और मतलब उस टाइम पे किसको ही पता होता है, like बहुत कुछ करना होता है और हमेशा चेंज होता है, बट इतना पता था कि I have to go and do something creative and artistic, ऐसे उसमें जाना है, फील्ड में जाना है. And then after my graduation, I did a diploma in animation from Zika SL World Mumbai, and after completing my diploma, मैंने Zika प्रोडक्शन ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने एज अ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट एंड एज अ ग्राफिक आर्टिस्ट ज्वाइन किया मैंने, और वहाँ पे मैंने काफी सारे कमर्शियल्स में काम किया, 2D का काम किया, आर्किटेक्चर वॉक थ्रू किए, बुक्स में काम किया, काफी डिफरेंट टाइप के मीडियम्स में काम किया, और उससे एक अच्छा फाउंडेशन मिला मुझे वहाँ पे काम करके. एंड देन देयर वी यूज्ड टू यूज माया 2007, या उस टाइम माया 2007 था, एंड इट हैज अ फर मॉड्यूल which was quite interesting at that point, matlab having a fur module in Maya. So I started learning it, and with the help of my faculty Kalpesh Arun, I learned Maya fur. So in 2008, I joined DQ Entertainment Hyderabad as a grooming artist, and there I worked on this show called Twisted Whisker for BBC and American Greetings, and it has around 52 furry characters and creatures, and it was a great learning. And DQ mein I got an opportunity to work in lot of lot of pilot projects and different kind of shows and lot of R&Ds. So there I learned a lot about like fur and grooming and everything. So after around 2 years in DQ, I joined Prana in early 2011 as a grooming artist. Now Prana was my first big international studio, I would say. International clients, pipeline, lot to learn and explore, and Disney was the main client of Prana. So I got the opportunity to work a lot in Disney shows, and that was a big learning actually. And I would say Prana has the one of the best culture and work environment in industry actually. Now this show, it was can't pronounce the French name of it, but it's called PJP MMP in short. It was the first show on which I have worked as a grooming lead, and then we had like a lot of shows from Netflix and BBC. So the last one was Watership Down. It came on 2019. Yeah, it's on Netflix, and it has a lot of furry rabbits. And these are some Bollywood movies I have worked on. Like I am sure you guys must have seen like Zindagi Na Milegi Dobara, and the last scene where all our 3 actors are running in front of bulls. So all that bulls are CG, and I got the opportunity to work in them. And again, like Mirzia has some lioness shot, and Manikarnika has a tiger shot. So that was like Bollywood. And then Prana has an ad department as well, and like I worked a lot in ad films as well. And
एड्स में काम करके काफी सीखने को मिलता है, बिकॉज पाइपलाइन होती है पर डेडलाइन थोड़ी टाइट होती है, तो यू गो ओवर प्रोटोकॉल्स एंड डू थिंग्स ऑन योर ओन एज वेल, सो काफी कुछ सीखने को मिलता है एड में। और फिर हम लोगों ने मेरे प्राणा में राइट फिल्म में भी काफी करी, लाइक आई वर्कड ऑन नाइट एट द म्यूजियम राइट फिल्म, जिसमें हम लोगों ने अनरियल काफी एक्सप्लोर किया था। So overall, I would say like Prana has helped me drastically in improving my technical skill, communication skill, management skill. Like I I owe a lot to Prana in terms of that. And then last year I joined Frame Store, and I hope in like coming time I will have work to share with you guys from Frame Store as well. Now let's move to our second part, Creature Effects. What is Creature Effects? So as the name suggests, Creature Effects is primarily about creatures and digital doubles, sometimes props as well, and we add physics, simulation, and details, or I would say like we add a bit of more life or sense of realism in character. And if you see, in last decade, creature effects has become a crucial part of storytelling. Like अपने पास इतनी सारी movies है creature effects में कि we have like characters which are center part of the movie. Like हल्क के ऊपर एक अलग से movie है, आपके पास सीजर है जो like you have a character called सीजर जो जिसके ऊपर जो पूरी movie है. Then you have रिचर्ड पार्कर, किंग कॉन्ग, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो creature effects हैवी हैं और जो मूवी को ड्राइव करते हैं। और अभी उससे क्या होता है, मतलब क्रिएचर इफेक्ट्स से फायदा क्या होता है कि जो कन्वेंशनल पहले होता था कि पहले एनिमेट्रॉनिक्स यूज करते थे या फिर एक्टर्स को मास्क पहना के यूज करते थे, तो वहां पे आपको स्टोरी टेलिंग में इतना फ्रीडम नहीं मिल पाता था जो कि अभी आपको मिल पाता है। तो क्रिएचर इफेक्ट्स का काफी एक वाइड स्कोप है आज के टाइम पे, और नॉट जस्ट आई वुड से मूवीज, अभी तो वेब सीरीज, टीवी सीरीज, ब्राइट फिल्म्स, एड फिल्म, सब जगह यूज होता है। सो अभी अपन देखते हैं कि क्रिएचर इफेक्ट्स ने कैसे प्रोग्रेस किया और कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ थ्रू आउट द इयर्स। सो जुरासिक पार्क मैंने आप लोगों को बताया कि 1993 में जुरासिक पार्क में फर्स्ट टाइम क्रिएचर यूज किया था, एंड नेक्स्ट 1994 में एक मूवी आई थी फ्लिंट स्टोन, एंड दिस वाज द मूवी जहाँ पे फर्स्ट टाइम इन लोगों ने फर यूज किया फॉर सम लाइक दिस कैरेक्टर्स। उसके बाद पिक्सार की एक शॉर्ट मूवी आई थी जो उन्होंने टॉय स्टोरी के साथ रिलीज करी थी, गैरीज गेम, जहाँ पे एक बंदा खुद के साथ चेस खेल रहा होता है, तो वहां पे फर्स्ट टाइम दे हैव यूज्ड क्लॉथ फॉर हिज कोट। एंड देन वी हैड मॉन्स्टर इंक, जहाँ पे आपका ये फरी कैरेक्टर था सोली करके, विच वाज कंप्लीटली फुल ऑफ फर, लॉन्ग फर। देन किंग कॉन्ग आई 2005 में, विच वाज अ रियल गेम चेंजर एक्चुअली, बिकॉज King Kong was first time like big scale, furry and close to photoreal character, and which was like all interactive and all that, and obviously it got Oscar. And then 2007 में Golden Compass आई, again amazing movie, got Oscar. फिर अवतार आई, अवतार ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अपार्ट फ्रॉम द मोशन कैप्चर, अवतार में काफी सारे क्रिएचर वर्क भी हुए जो कि फ्लाइंग, उनके डायनासोर फ्लाइंग, हाँ टीरेक्स टाइप थे, एंड देन बहुत सारे एलियन स्पीसीज के भी उसमें क्रिएचर्स थे, एंड ऑब्वियसली अवतार गॉट ऑस्कर फॉर दैट। एंड देन राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप आई, जहाँ पे सीजर करके कैरेक्टर था जो कि सेंटर पार्ट था, एंड सीजर का बेस्ट पार्ट ये था कि इट वाज सो रियल कि आप भूल जाते हो उसको देखते वक्त कि उसमें कितना टेक्निकल काम हुआ है, इतना ज्यादा रियल था वो। एंड देन 2012 में लाइफ ऑफ पाई आई, विच वाज अगेन अमेजिंग मूवी एंड इट वॉन ऑस्कर। फिर ज़ूटोपिया आई 16 में, लाइक ऑल फरी कैरेक्टर्स, अगेन टिपिकल डिज्नी पिक्सर मूवी। एंड ज़ूटोपिया में 64 टाइप के कैरेक्टर थे, स्पीसीज थे कैरेक्टर के। बट देन अगेन 16 में जंगल बुक भी आई, जहाँ पे 70 स्पीसीज के कैरेक्टर थे, एंड जंगल बुक में तो वाज लाइव एक्शन मूवी, पर उसमें सिर्फ जो अपना मेन कैरेक्टर था मोगली वही ह्यूमन था, बाकी सब कुछ
सीजी था, एंड जंगल बुक गॉट ऑस्कर फॉर दैट। देन कोको आई 17 में। कोको में खास बात ये थी क्रिएचर इफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें स्केलेटन में क्लॉथ सिम था, विच वाज क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली, स्केलेटन के ऊपर क्लॉथ सिम करना। देन 17 में आपकी कॉन्ग स्कल आइलैंड आई थी, जहाँ पे कंपेयर टू द लास्ट कॉन्ग जो किंग कॉन्ग आई थी, ये अग्रेसिव कॉन्ग था। इट वाज लाइक ऑल फाइटिंग विद जायंट डायनासोर्स एंड ऑक्टोपस इन मड वाटर चेन, मतलब फुल ऑन क्रिएचर इफेक्ट्स का शो था ये। देन वी हैड एवेंजर्स। अभी एवेंजर्स पूरी सीरीज ही है, और एवेंजर्स सीरीज कैसा बोल सकते हैं कि फॉर एनी क्रिएचर इफेक्ट आर्टिस्ट it's a one of the best series, you can say. You have furry creatures, you have Hulk, you have superheroes with cape, you have Thanos with his army of creatures. तो मतलब full on creature effects work था इसमें. And then you have Lion King, जो कि काफी like it was a great movie to watch. 19 में अलीटा आई थी, उसमें भी काफी अच्छा काम था। और अभी 2020 में पिक्सर की ऑनवर्ड आई, जहाँ पे एक कैरेक्टर ही था जो क्लॉथ का बना हुआ था, लेकिन इन स्टार्ट ऑफ द मूवी ही इज ओनली हाफ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, सिर्फ पैंट दिखती है, उसके बाद में उसका टॉप पार्ट वो लोग क्लॉथ से बनाते हैं, एंड इट हैज नो इनर बॉडी। सो आप समझो कि गैरिस गेम में जो शुरू हुआ था क्लॉथ सिम, अभी 2020 आके ऐसा हो गया कि यू हैव अ कैरेक्टर मेड ऑफ क्लॉथ। एंड देन यू हैव डूलिटिल भी आई थी अभी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी क्रिएचर इफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन क्रिएचर इफेक्ट्स की बात करें और हम गेम ऑफ थ्रोन्स की बात नहीं करें, कैसे हो सकता है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स में काफी ज्यादा क्रिएचर वर्क था, जो आप लोगों ने देखा होगा। और देन हिज डार्क मटेरियल जो भी सीरीज आ रही है, उसमें भी काफी हैवी क्रिएचर इफेक्ट्स वर्क है। और आजकल तो एड फिल्म्स में भी काफी क्रिएचर इफेक्ट्स वर्क होता है। मतलब यू टेक इट, मतलब कोई भी आप एड का नाम लो, मतलब चाहे कार की एड हो, मेडिसिन की एड हो, म्यूजिक की एड हो, हर में आजकल यू सी मैस्कॉट रहता है या कुछ ना कुछ क्रिएचर इफेक्ट्स रहता ही है। सो क्रिएचर इफेक्ट्स अभी काफी इवॉल्व हो रहा है, और स्पेशली विद पेटा, जो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। तो अभी क्या है कि आप एनिमल्स भी उतना शूट नहीं कर सकते, जो कि अच्छी बात है। तो उसकी वजह से भी क्रिएचर इफेक्ट्स का काम काफी बड़ा है। और अभी आपके जो ये AR और VR आए हैं, जो राइट फिल्में होती हैं, उनमें भी अभी काफी क्रिएचर इफेक्ट्स होता है। गेमिंग में काफी आजकल रियल टाइम हो रहा है क्रिएचर इफेक्ट्स, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी we will move to our next topic की creature effects workflow. So in terms of workflow, creature effects आता है मॉडलिंग, रिगिंग और एनिमेशन के बाद, और एफेक्ट्स और लाइटिंग के पहले। So मॉडलिंग में जब आपका मॉडल फाइनल हो गया, जब समझो मॉडल अप्रूव हो गया, तो वहां से वो मॉडल जाता है रिगिंग डिपार्टमेंट को, ग्रूमिंग को और क्रिएचर इफेक्ट्स को भी। और क्रिएचर इफेक्ट्स में हम लोग टेक्स्ट चेक करते हैं, सिमरिक डेवलप करते हैं एंड शॉर्ट सिमुलेशन करते हैं। तो क्रिएचर इफेक्ट्स में मेनली दो पार्ट होता है, एक तो होता है सिमरिक डेवलपमेंट, और उसका दूसरा होता है शॉर्ट प्रोडक्शन या शॉर्ट सिमुलेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज योर सिमरिक डेवलपमेंट। तो आपका जब मॉडल फाइनल हो गया और ग्रूम भी चालू हो गया, ग्रूम फाइनल हो गया आपका, तो हम वहां से फिर सिमरिक बनाना शुरू करते हैं। भाई सिमरिक क्या होते हैं? So Simrics are rigs which allow running of simulation independently or driven or influenced by animation. And Simrics depend करते हैं कैरेक्टर के एलिमेंट और रिक्वायरमेंट पे। लाइक सपोज आप कैरेक्टर को अगर क्लॉथ है तो यू विल हैव अ क्लॉथ सिमरिग, मसल है तो मसल सिमरिग, हेयर और फर है तो हेयर फर सिमरिग, या प्रॉप्स है तो उनके सिमरिग होते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट क्रिएटिंग सिमरिग, हम लोग कुछ और करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होता है, which is collecting and studying references. And personally ये मेरा favorite part होता है being a creature effects 3D। क्यों? Because यहाँ पे हम लोग reference study करते हैं। अब depending on the character, then the element and the range of performance, हम लोग reference study करते हैं, और हम लोग live action मतलब वीडियोस लेते हैं या फिर मूवीज का रेफरेंस लेते हैं, और कई बार हम लोग खुद का वीडियो भी शूट करते हैं। लाइक आई विल टेल यू, हम लोगों ने अभी एक ऐड किया था, इमामी डबल बुल सीमेंट का ऐड था, उसमें बुल था। तो वो बुल के रेफरेंस शूट के लिए हम लोग एक्चुअली मुंबई में आर्य कॉलोनी में हम लोग तबेले में गए थे, और वहां पे हमने
बुल को शूट किया, क्रिएचर इफेक्ट्स के लिए भी और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी, लाइक टेक्सचरिंग के लिए और एनिमेशन रेफरेंस के लिए भी शूट किया था। और कई बार हम लोग स्टूडियोज में भी ऐसा करते हैं कि जैसे समझो आपको लॉन्ग हेयर या करली हेयर सिम करना है, तुम ढूंढते हैं यार कौन बंदा है बंदी है मतलब जिसकी लॉन्ग और करली हेयर है, फिर उसको जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमको थोड़ा सा वीडियो शूट कुछ आप परफॉर्मेंस करके दिखा दो, वीडियो शूट करना है हमको। तो वो भी मतलब इंटरेस्टिंग रहता है काफी, और काफी कुछ सीखने और जानने को मिलता है जब आप रेफरेंस वीडियोस देखते हो, स्टडी करते हो। पर कभी-कभी जब आप ऐसे क्रिएचर कर रहे होते हो जहाँ पे वो क्रिएचर रियल नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा और ज़्यादा क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो वैसे कैरेक्टर्स जो कि फुल्ली रियलिस्टिक नहीं है, वहाँ पे फिर आपकी खुद की क्रिएटिविटी काफ़ी काम आती है कि आपको रियलिस्टिक रेफरेंस भी लेना है और खुद का इनपुट भी डालना है और एक ब्रिज बनाना है ताकि वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग भी लगे, फैंटेसी वर्ल्ड में भी लगे और साथ में अम्यूजिंग भी लगे। सो फिर ये जो रेफरेंस हम कलेक्ट करते हैं, वो हम अपने लीड्स और सुपरवाइजर के साथ शेयर करते हैं और कलेक्टिवली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये रेफरेंस रिलेवेंट है, इसको यूज़ करना है, इसको नहीं करना है, एंड एक एक रेफरेंस शीट टाइप बनाते हैं कोई भी कैरेक्टर के लिए कि हाँ, हम लोग को ये रेफरेंस यूज़ करना है। सो आपका रेफरेंसिंग हो गया, रेफरेंस आपने कर लिया, फाइनल कर लिया, एंड देन हमारे पास मॉडल भी आ गया, ग्रूम भी आ गया, रिगिंग भी आ गया। फिर वहाँ से हम लोग सिमरिक पे काम करना शुरू करते हैं। अब सिमरिक जिस टाइप का होता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि अगर क्लॉथ का है, हेयर का, तो स्ट्रक्चर कैन बी लिटिल डिफरेंट। बट इन एनी केस एक सिमरिक में आपके सॉल्वर रहते हैं, कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, कोलाइडर रहते हैं विथ योर मसल क्लॉथ ज्योमेट्री, और ग्रूमिंग के जो गाइड आते हैं हेयर या फर के, वो रहते हैं। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि सिमरिक में आपके की स्टेप्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज लाइक टेक चेक ऑफ क्लॉथ मैश, ग्रूम गाइड, ग्रूम नोड एंड मसल। तो जैसा मैंने बताया कि मॉडलिंग से आपके पास जब इनपुट आता है तो आप क्लॉथ का मैश चेक करते हो कि क्लॉथ का जो मैश आया है आपके पास वो टेपोलॉजी कैसी है उसकी, उसमें ट्राइंगल्स नहीं होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए मैश। सेम फॉर ग्रूमिंग के जो गाइड आते हैं उनके सेगमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, नोट्स कितने हैं। सपोज आपको अगर एक कैरेक्टर में एक सिर्फ पोनीटेल सिम करना है तो वी वुड प्रेफर कि वो पोनीटेल एक अलग नोड में, ग्रूमिंग नोड में आपका बनाया हुआ हो, इजी होता है करने में। सेम गोज फॉर मसल, आप मसल वगैरह भी चेक करते हो। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग सिंगल लेयर बेस मेश फॉर क्लॉथ। तो क्लॉथ जो मॉडलिंग में बनता है वो मोस्टली थिकनेस होती है क्लॉथ में, तो डबल लेयर बनता है क्लॉथ। पर हम लोग जो सिम करते हैं क्रिएचर इफेक्ट्स में, हम लोग उसका सिर्फ इनर लेयर सिम करते हैं, सिंगल लेयर सिम करते हैं, बिकॉज इट्स मोर एफिशिएंट एंड इट्स मोर इजी एंड आई वुड से सिम एफिशिएंट होता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि जो मॉडलिंग से मैश आया है उसका सिर्फ एक सिंगल लेयर मैश उसी से क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका मेकिंग द एलिमेंट डायनामिक। अभी इसका मतलब हुआ कि आपका जो अगर क्लॉथ है, फर है या कुछ भी है, आप उसको डायनामिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, उसमें कोलिजन मैश डिफाइन करते हो उसका, उसमें कंस्ट्रेंट ऐड करते हो। अगर आपका कैरेक्टर ने पैंट पहना हुआ है तो आपको उसके वेस्ट के पास कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा ताकि आपका पैंट उसके साथ होल्ड हो सके, और मसल्स हैं तो मसल्स को बोन के साथ अटैच करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेमिंग एंड कन्वेंशन एंड ग्रुपिंग। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। Darshan, there's a question. Yes. That's why I wanted to interrupt. It's by Ritik. He's asking what is nodes. If you can explain in simple terms what are nodes. Yeah, We're talking about groom nodes here, so they'll be able to understand as well. डेफिनेटली। सो नोट्स जब हम बोलते हैं तो ये कैसा है कि ग्रूमिंग जब आप करते हो, सपोज आपके पास एक एक कैरेक्टर है जहाँ पे आप वो उसका पूरा फर लगाना है उसके ऊपर, तो आप क्या करते हो कि आप उस पे एक सिंगल लेयर में फर नहीं लगाते। नोट्स को आप लेयर बोल सकते हो। आप क्या करते हो कि उसको कैरेक्टर को डिवाइड कर देते हो, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो कि आप उसने आपने उसके फेस पे एक पार्ट पे फर लगाया, वो एक नोड हो गया। आपने उसके बॉडी पे फर लगाया, वो एक नोड हो गया। लेग पे लगाया, वो एक नोड हो गया। इससे क्या होता है कि आपको कंट्रोल मिलता है ग्रूमिंग के टाइम पे। तो जैसे अगर आपकी लॉन्ग हेयर है और पोनीटेल है आपके कैरेक्टर को, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो आपका जो मेन हेयर है, जो आपको पता है कि
बेस सिम नहीं होने वाला है, उसको आप एक नोट पे रखते हो, और जो आपका पोनीटेल है और मोस्टली डिसाइड करता है, पर कई बार होता है कि क्रिएचर इफेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कैरेक्टर के डिफरेंट पार्ट को सिमुलेशन के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं ग्रूमिंग में डिफरेंट पार्ट्स में। नोट्स आर पार्ट्स एक्चुअली, ताकि आप उनको कंट्रोल कर सको ग्रूमिंग में भी और क्रिएचर इफेक्ट्स में भी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मे बी मैं आपको बाद में माया में भी दिखा सकता हूँ एक्शन में कि नोट्स क्या होते हैं। लाइक वंस वी कम इनटू द एंड ऑफ आवर सेशन, हम लोग Q&A में आपको मैं दिखाता हूँ कि नोट्स एक्चुअली एक्शन में इन टर्म्स ऑफ एक्शन या ग्रूमिंग में नोट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो that'll be great. yeah, we'll continue. So naming convention and grouping. अभी नेमिंग एक्चुअली अपन सोचते नहीं है इतना, पर नेमिंग काफी इंपॉर्टेंट है जब आप स्टूडियो एनवायरनमेंट में काम करते हो, जब आप सिमरिक बनाना शुरू करते हो। हर एक डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ सिमरिक हम लोग के लिए नेमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप सपोज एक सिंपल आप क्लॉथ रिक बना रहे हो, आपके कैरेक्टर ने 3-4 कपड़े तो पहने ही होते हैं, पैंट शर्ट जैकेट ऐसा कुछ। तो अभी आपने पैंट को क्लॉथ ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका आ जाएगा, अगर आप एन क्लॉथ यूज कर रहे हो तो एन क्लॉथ ऑब्जेक्ट 1 2 3। ठीक है, आप तो आपका मतलब एक रिक बना रहे हो, आपको पता है कि कौन क्या है, लेकिन आपने कंस्ट्रेंट लगाए 4-5, आपने कोलाइडर ऑब्जेक्ट लगाए, नेमिंग नहीं है अगर, तो जो सिमरिक बाद में यूज होगा या आप भी बाद में यूज करोगे, आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके लिए है। तो नेमिंग और ग्रुपिंग बहुत जरूरी है कि आपने आपके सारे क्लॉथ ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में रखा, उसको प्रॉपर नेम दे दिया, लाइक GRP क्लॉथ, आपने कंस्ट्रेंट को एक में रखा, मेश को एक में रखा। और मैं आपको बाद में माया में एक फाइल खोल के भी दिखाता हूँ कि एक बहुत बेसिक फाइल बनाई है मैंने कि सिमरिक में स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसमें नेमिंग किस टाइप की होनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है नेमिंग। और आई वुड से जब आप सिमरिक बना रहे होते हो तभी नेमिंग करना शुरू करो। ये नहीं करते कि हम बना लेते हैं बाद में नेमिंग करेंगे। मेक इट एन हैबिट कि जब आपने फाइल बनाना शुरू किया है तभी नेमिंग प्रॉपर करते जाते हैं उसको साथ में। फिर नेक्स्ट आता है मेकिंग वेरिएंट एंड शॉर्ट स्पेसिफिक सिमरिक इफ रिक्वायर्ड। सो कई बार क्या होता है ना कि आपके कैरेक्टर सेम कैरेक्टर है, पर उसने कुछ एडिशनल कपड़े पहने होते हैं कुछ शॉट्स में, या कपड़े चेंज किए होते हैं, या फिर आपका कैरेक्टर पानी में गया, उसका फर वेट हो गया। तो उसके लिए हम लोग फिर वेरिएंट रिग बनाते हैं। मेन रिग हो गया एंड देन एज अ वेट वेरिएंट, और कई बार कैरेक्टर विद जैकेट वैसा बनाते हैं। जैसे कि रिचर्ड पार्कर जो कैरेक्टर है लाइफ ऑफ पाई मूवी में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो स्टार्टिंग में काफी हेल्दी होता है जब शुरू होती है मूवी, और फिर वो जर्नी में एकदम मेल न्यूट्रिश हो जाता है और पतला हो जाता है, फर भी थोड़े उड़ जाते हैं उसके। तो काफी सारे वर्जन्स थे थ्रू आउट द मूवी उसके सिमरिक के, जैसे जैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। फिर नेक्स्ट आता है एड फील्ड्स इफ रिक्वायर्ड। तो फील्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जो माया में अपने डायनेमिक में फील्ड होते हैं, लाइक विंड, टर्बुलेंस। तो अगर आपको पता है कि आपका कैरेक्टर, लाइक स्टोरी बोर्ड से मालूम पड़ता है कि अपना कैरेक्टर सपोज हवा में उड़ने वाला है या एक विंडी इन्वायरमेंट में है जहाँ पे बहुत हवा चल रही है, तो उसका फर भी उड़ेगा। तो आप क्या करते हो कि विंड या टर्बुलेंस, ये जो फील्ड्स हैं, आप अपने सिमरिक में ही अटैच करके और एक टेस्ट करके भी देख लेते हैं, करते हैं, ताकि जब आप शॉट करने जाओ तो वहां पे आपको स्क्रैच से ये सब नहीं करना पड़े। देन Okay, Darshan, there's another question. Basically, yes, very basic question. What is a cloth mesh by Hiral? क्लॉथ मेश। सो हम लोग जब मॉडलिंग से जो अपने को क्लॉथ आता है, मतलब कैरेक्टर आता है, तो उसने जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो क्लॉथ होता है, उसी को हम लोग क्लॉथ मैश वो क्लॉथ हो गया। पर वो मोस्टली थिकनेस के साथ होता है, एक डबल लेयर क्लॉथ होता है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि रियल लाइफ में भी कपड़े सिंगल लेयर तो होते नहीं, उसमें थिकनेस तो होती है, तो डबल लेयर क्लॉथ बनाते हैं वो लोग। और हम लोग सिमुलेशन के लिए क्या करते हैं कि वो डबल लेयर क्लॉथ यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ उसका इनर पार्ट लेते हैं और उसको यूज करते हैं, और बाद में जो डबल लेयर क्लॉथ है उसको रैप करते हैं। ये भी मैं आपको माया में एक दिखाऊंगा, एक टी शर्ट है मेरे पास, सिंगल लेयर और डबल लेयर क्लॉथ जो है क्या होती है वो मैं दिखाऊंगा। पर इन बेसिक यही होता है कि जो मॉडलिंग से आता है उसका एक हम सिंगल लेयर मैश बनाते हैं सिमुलेशन के लिए, और बाद में जो फाइनल मैश है उसको रैप करते हैं अपने सिंगल लेयर मैश से। ठीक है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। Hey, one more question. Sorry, one more question. I'm taking before we move ahead. This is by Bhumi. She's asking what is the difference between N-cloth and collider object? N cloth and collider object.
सो मैं अभी आपको थोड़ा सा वर्बली बताता हूँ, फिर माया में दिखाऊंगा, वो बेटर रहेगा एक्चुअली। बट या, एनक्लॉथ आपका डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है जो कि मूव करेगा, जिसमें सिमुलेशन होगा। और आपका कोलाइडर ऑब्जेक्ट वो है जिसके साथ वो कोलाइड होगा। तो अगर समझो आप, मतलब मैंने अगर टी शर्ट पहनी है, तो जो मेरी बॉडी है वो कोलाइडर ऑब्जेक्ट होगी, और जो टी शर्ट मैंने पहनी है वो एनक्लॉथ ऑब्जेक्ट होगा, जो मेरी बॉडी के साथ कोलाइड होके सिमुलेट होगा। ठीक है, ये फिर हम माया में भी देख लेंगे कि इन टर्म्स ऑफ लाइक, मतलब माया में एनक्लॉथ क्या है और आपका कोलाइडर ऑब्जेक्ट क्या है। और कोलाइडर ऑब्जेक्ट कई बार आपका एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि अभी समझो मैंने अगर टेबल पे हाथ रखा है, तो टेबल को भी मैं एक कोलाइडर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ताकि मेरा क्लॉथ जो है वो टेबल के साथ कोलाइड हो सके, क्योंकि अब रियल Okay. लाइफ में तो कोलिजन होता नहीं है। अच्छा, just go back to the last slide. या There's one of the student who is obviously not understanding Hindi. So, can you explain the naming wala thing, naming convention and grouping in English, because he couldn't understand the Hindi part. okay. So naming convention and grouping is a very crucial part when you are developing SIMRIG. Normally we don't pay much attention to naming, but when you work in a studio environment, it's very crucial, because your SIMRIG is not going to be used only by you, but by a lot of other people. So when I'm saying naming and grouping, it means that naming your uh, constraints, naming your solvers, naming your meshes. Like if you have, suppose if you have three cloth mesh, pant, shirt, and jacket, and you convert them into dynamic object. So the default naming will be like ncloth 1, 2, 3. So you should name it properly, that ncloth shirt, ncloth pant, ncloth jacket, and same goes for constraint. If you have added constraint for waist, you should name it like ncloth waist, ncloth bottom, and then group them together. Like if you have 5 constraint, group them together in one group like grp group constraint. If you have 3 ncloth object, group them together and name it like grp ncloth. So this will help a lot when you're doing short production and you have to jump between different objects. So you know what is what and where to find something, like where to find constraint, where to find fields, if you have proper naming and grouping. I hope this explain your query. Yeah, this was perfect. Very basic questions, DJ. That's why we're actually No problem, sir. taking questions. Muscle is like another question by Ravi Pathak. Muscle is like muscle rig or any other option in FX. So when we say like in terms of creature effects, when we say muscle, it's actually the muscle rig. And muscle rig is not just muscle rig, it has 4 or 5 layers, which we will cover in our upcoming, in our session later. Like it's actually a skin simulation, but it's so such that in industry people call it like muscle simulation, but it has muscle, fat, fascia, and final output is actually skin, which simulates. So when we say muscle simulation, it's muscle rig and muscle simulation, including all the layers. Okay, there is a bit confusion. Sahil is asking, sir, VFX and creature effects, are they both different? No, creature effects is a part of VFX and CGI. It's a department. Like how you have modeling, texturing, rigging, grooming. Grooming is your fur and hair. You have creature effects, which is some places it called creature effects, some places they call it tech anim or technical animation, you can say, where you do dynamic simulation on objects which are not fully animated or animated, like cloth, hair, which are actually dynamic. You don't animate cloth and hair, you simulate them. So cloth, hair, muscle, fur, all this comes in technical animation or creature effects. It's a standard industry terminology, which like is used for like most of the studios worldwide, like creature effects as a department. Like in Prana we had tech anim, later it became creature effects. In Framestore we have a creature effects department only. Thanks, because it answered another question by Ravi Raj, which was also asking what is the basic of creature effects. I think that answers his question as well in terms of it's also called tech anim and what it
Yeah, was actually, part of. yes, that's true. Because in India, a lot of people call it tech anim because it was started like that, technical animation. And now, if you see, the more industry term is creature effects actually. So, but it's the same thing, technical animation or creature effects. Sure. Let's go ahead. Yeah. So, once we like make the object dynamic, naming and all, everything is done. Now we start testing our SimRig with different range of animation. So now here we take input from animation, and the range of animation depends on the complexity and the performance of the character or prop. So suppose अगर आपको पता है कि your character is going to do a lot of fighting, jumping, and full action. So in that time, in that terms, अगर आपने सिर्फ वॉक साइकिल पे आपका सिमुलेशन टेस्ट किया है या रन साइकिल पे टेस्ट किया है, that won't help a lot. आपको एक पूरा बॉडी कैलेस्थेनिक टेस्ट करना पड़ेगा. बॉडी कैलेस्थेनिक एज इन लाइक मतलब स्ट्रेचिंग, सिटिंग, जंपिंग, सारा कुछ टेस्ट करना पड़ेगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपके कैरेक्टर का परफॉर्मेंस क्या है. अगर आपको पता है कि सेकेंडरी कैरेक्टर है विच वॉन्ट डू सो मच ऑफ एक्शन, तो यू कैन गो एंड गेट अवे विथ अ सिंपल वॉक साइकिल, रन साइकिल, basic. Then second is get presets. So once you start testing the range of animation and simulation, आप अपने जो पैरामीटर्स हैं सिमुलेशन के उनको भी ट्विक करना शुरू करते हो टू गेट अ बेटर आउटपुट. एंड देन उस पॉइंट पे जहाँ पे कि आपका सिमुलेशन अप्रूव हो जाता है, आपका जो सिमरिक का सिमुलेशन है, टेस्ट है, वो अप्रूव हो जाता है आपके लीड से, सुपरवाइजर से, एंड यू आर आल्सो सेटिस्फाइड विद इट. आप एक प्रीसेट बना देते हो कि ये जो वैल्यूज हैं उनको सेव कर देते हो, एंड सेव करके एक प्रीसेट बना देते हो विच इज योर डिफॉल्ट प्रीसेट फॉर द कैरेक्टर. और कई बार ये अगर समझो आपका कैरेक्टर विंडी एनवायरनमेंट में या हवा में उड़ रहा है, तो आपने उसके लिए भी एक टेस्ट किया और उसका भी एक प्रीसेट बना दिया, तो आपके पास अभी 2 प्रीसेट हो गए, एक डिफॉल्ट हो गया, एक विंडी हो गया. ऐसे करके आप मल्टीपल प्रीसेट्स बनाते हो शॉट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बेसिक बना के रख देते हो. ठीक है. एंड ये आपको काफी हेल्प करता है शॉर्ट प्रोडक्शन के टाइम पे. एंड देन ऑप्टिमाइजेशन. अगेन स्टूडियो एनवायरनमेंट में ऑप्टिमाइजेशन काफी जरूरी है. ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपके सिमरिक को आप लाइट रखो इन टर्म्स ऑफ मैश का टोपोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आपका सेगमेंट कितना है, अपने न्यूक्लियस कितने लगाए हैं, सॉल्वर या न्यूक्लियस जो है वो कितने लगाए हैं, अपने कंस्ट्रेंट भी कितने लगाए हैं. मतलब जितना एफिशिएंट हो सके, जितना जरूरत के हिसाब से हो सके उतना बेटर है. बिकॉज आपका जब शॉर्ट प्रोडक्शन में आएगा तो वहां पे आपके पास एक पूरा शॉट रहेगा करने के लिए विद मे बी अदर कैरेक्टर्स एज वेल, इंटरेक्शन एज वेल. इट विल बी क्वाइट हैवी एंड टाइम टेकिंग अगर आपका ये ऑप्टिमाइज नहीं है तो. एंड आई वुड सजेस्ट स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन डेवलपिंग सिमरिक, बिकॉज ये शॉर्ट प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है. जितना आप यहाँ पे टेस्ट करोगे वहां पे आपके उतने जेनरिक शॉट्स और इजी निकलेंगे, और कॉम्प्लेक्स शॉट के लिए भी आपको एक गुड स्टार्ट मिलेगा. So once we develop SimRig and it's approved by supervisors and leads and everyone, then we move to the actual short production, मतलब show time. अभी आपके पास शॉट्स आने शुरू होते हैं. So steps for short simulation या short production. तो we start with building the shot जो हमको असाइंड हुआ है. लाइक हर एक आर्टिस्ट को कुछ शॉट असाइंड होते हैं. लाइक मुझे एक शॉट असाइंड हुआ तो मैं एक सीन बिल्ड करना शुरू करूंगा उस शॉट के लिए. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं एनिमेशन से जो बेक है उसको इंपोर्ट करूंगा अपने फाइल में. अभी ये एबीसी हो सकता है, एलम्बिक, या फिर FBX हो सकता है, या कई बार स्टूडियोज के खुद के भी ये होते हैं, फॉर्मेट होते हैं उसको लेने के लिए. तो आप एनिमेशन इंपोर्ट करते हो, कैमरा इंपोर्ट करते हो शॉट में कि आपका कैमरा क्या है, जो कि मोस्टली एनिमेशन से पब्लिश होता है, वो आप इंपोर्ट करते हो या रेफरेंस करते हो. एंड देन आप चेक करते हो प्री रोल और एनिमेशन. जैसे हम मॉडल टेक चेक कर रहे थे क्लॉथ का, यहाँ पे भी हम एनिमेशन का टेक चेक करते हैं शॉट शुरू करने से पहले. और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है प्री रोल, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. अभी प्री रोल क्या होता है ना, कि इसके बोल सकते हैं 3 स्टेज है. ये पहले का है, मतलब एनिमेशन शुरू होने के पहले का एनिमेशन, जो कि किसी भी सिमुलेशन के लिए बहुत जरूरी है. तो आपका जो टी पोज होता है, वहां से आपका कैरेक्टर अराउंड 20 फ्रेम्स में सपोज आपके एनिमेशन के फर्स्ट फ्रेम पे आना चाहिए. वहां पे फिर वो एक कुछ फ्रेम 10 फ्रेम समझो होल्ड करना चाहिए. एंड थर्ड इज
कि आपका जो एक्चुअल एनिमेशन शुरू होने वाला है उसके 10 फ्रेम पहले एनिमेशन शुरू होना चाहिए, ताकि जब आपका सिमुलेशन शुरू हो तो वो झटके नहीं मारे, पॉप नहीं करे या जंप नहीं करे, क्योंकि सिमुलेशन को रेस्ट होने के लिए टाइम लगता है। आप अगर एक बेसिक अगर आप क्लॉक भी देखोगे इस पे लगा के स्पीयर पे, आप देखना कि मतलब वो उस पे गिरता है और उसके बाद उसको टाइम लगता है सेटल होने में। तो वो सेटलिंग टाइम जो है दैट यू नीड इन प्री रोल, और ये काफी क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि अगर प्री रोल ढंग का नहीं है तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है अपने को सिमुलेशन करने टाइम पे। इट गोज फॉर मसल, हेयर, फर, सबके लिए। फिर दूसरी चीज हम चेक करते हैं एनिमेशन की, आपका मेश जो है वो कहीं पे आप खुद में ही इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहा है, या एनिमेशन में कहीं पॉप या जंप तो नहीं है, बिकॉज अगेन ये आपके सिमुलेशन में बहुत क्रूशियल हो सकता है और होता भी है कि अगर आपके कैरेक्टर का हाथ, समझो उसने एक पोज किया हुआ, उसका हाथ उसके बेली को टच कर रहा है या अंदर घुसा हुआ है और कैमरे व्यू में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव में देखोगे तो वो दिखता है। अभी अगर हाथ और बेली के बीच में गैप नहीं है, हैंड और बेली के बीच में, तो फिर आपका क्लॉथ कहाँ एडजस्ट होगा, कहाँ पे सिम होगा। तो हम ये भी चेक करते हैं थ्रू आउट, मतलब प्री रोल से लेके पूरे एनिमेशन तक और ऑफ कैमरा भी, कि आपके कैरेक्टर में ज्यादा कहीं पे इंटरसेक्शन, पेनिट्रेशन या पॉप वगैरह नहीं हो। और अगर ऐसा कुछ होता है, सपोज आपके एनिमेशन के प्री रोल में कुछ इश्यू है या फिर इंटरसेक्शन है कुछ, या एनिम में ही कुछ पॉप है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर एनिम को वी फ्लैग इट टू एनिम and we send it back to anim, and obviously we keep our loops and supervisor in loop। ये हम लोग नॉर्मली करते हैं, एनिम को भेजते हैं, एनिम वाले उसको करेक्ट करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड देन दे गिव इट बैक टू अस। बट समटाइम्स क्या होता है कि क्रंच टाइम होता है, काम उनके पास भी ज्यादा होता है, और कुछ चीजें होती है जो हम लोग खुद भी फिक्स कर सकते हैं, तो फिर अगेन वी कंसल्ट विथ आवर लीड्स एंड सुपरवाइजर, और हम लोग छोटा मोटा फिक्स खुद भी कर लेते हैं। पर उस फिक्स में भी ये ध्यान रखते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो चेंज ना हो, कि आपने हैंड का पोजीशन ही चेंज कर दिया, वैसा नहीं करेंगे। मे बी यू कैन पुश द बेली इनसाइड अगर आपका ये इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे भी क्लॉथ से कवर होने वाला है। तो वो ध्यान में रखते हुए कई बार हम लोग भी उसमें फिक्स करते हैं। देन आपका प्री रोल हो गया, और अगर आप बहुत लकी हो तो चलो आपको एक प्री रोल क्लीन एनिमेशन भी मिल गया आपको। फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग उसमें अपना सिमरिक फेच करते हैं, जो सिमरिक आपने बनाया है उसको फेच करते हैं। अभी ये एलिमेंट पर डिपेंड करता है, अगर आप क्लॉथ सिम कर रहे हो तो क्लॉथ सिमरिक फेच करोगे, हेयर सिम कर रहे हो तो हेयर सिमरिक फेच करोगे, सेम गोज फॉर मसल। और फिर हम लोग वो सिमरिक को अपने एनिमेशन के बैक से अटैच करते हैं। अब मोस्टली ये ब्लेंड शेप से होता है, और जब आप पाइपलाइन में काम करते हो तो ये ऑटोमेटिक वो अटैच कर देता है, क्योंकि आपने पहले से वो ब्लेंड शेप और ये सब डिफाइन करके रखा है। नॉर्मली अगर आप खुद के लिए भी कर रहे हो तो आप ब्लेंड शेप से उसको अटैच करते हो, और इसके लिए भी जरूरी है कि आपका सिमरिक बनने के बाद टोपोलॉजी चेंज ना हो, और मॉडलिंग में भी या किसी भी डिपार्टमेंट में एक बार फाइनल हो गया तो टोपोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चेंज हो तो फिर सबको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्लेंड शेप या ये सब काम नहीं करेगा आपका। फिर आप एक बेसिक प्ले ब्लास्ट करके रिव्यू करते हो कि आपका सिमुलेशन कैसा आ रहा है, क्योंकि आपके सिमरिक में ऑलरेडी एक डिफॉल्ट प्रीसेट तो है जो आपने सिमरिक डेवलपमेंट के टाइम डिफाइन किया था। फिर आप उसको रिव्यू करते हो, आप देखते हो कि फिर मतलब इस एनिमेशन के हिसाब से आपको क्या क्या चेंज करना है, तो आप वैल्यूज ट्विक करते हो, प्रॉपर्टीज ट्विक करते हो, मैप्स वगैरह पेंट करते हो, और एक जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो आप लेके आते हो। अगेन आप रिव्यू करते हो अपने लीड के साथ, और अगर ये सही लगता है उनको भी तो फिर हम लोग एक रेंडर करते हैं, क्यूसी रेंडर करते हैं, लाइक नॉट कंप्लीट फुल लाइट रेंडर, एक डिसेंट रेंडर करते हैं जहां पे आपका प्रॉपर सिमुलेशन दिखे, कैरेक्टर भी दिखे, और अगर कुछ सेट वगैरह है, प्रॉप वगैरह है जहाँ पे उसका इंटरेक्शन है उसके साथ, तो उसको भी रखते हैं। एंड देन अगेन हम रिव्यू करते हैं, और सपोज रिव्यू में मतलब यू रिव्यू इट लाइक कपल ऑफ टाइम्स एंड अप्रूव हो गया, पर कहीं पे कुछ एक दो फ्रेम पे कोई आपका मैश कहीं पे पॉप हो रहा है, सिमुलेशन मैश, एनिमेशन नहीं, सिमुलेशन का मैश कहीं पे पॉप हो रहा है, या एक दो फ्रेम पे कहीं पे जंप है, तो फिर हम लोग फाइनलिंग करते हैं या शॉर्ट फिक्स करते हैं। तो इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे फाइनलिंग में आगे जाके। फिर शॉर्ट फिक्स करते हैं, अगेन रिव्यू करते हैं, और जब ये अप्रूव हो गया तो हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए, जो कि अपना लाइटिंग और एफएक्स है, हम लोग आउटपुट पब्लिश कर देते हैं। अभी अपने डिपार्टमेंट से जो आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है वो ये होता है, अगर क्लॉथ सिम है तो क्लॉथ जाता है, हेयर सिम है तो जो गाइड्स होते हैं वो जाते हैं, प्रॉप है तो प्रॉप में कुछ भी हो सकता है, क्लॉथ हेयर वो जाता है।
मसल सिम जो करते हैं उसमें एक्चुअली सिम 4-5 लेयर में होता है, लेकिन आउटपुट जो है वो स्किन जाता है सिर्फ एज ए आउटपुट अपने डिपार्टमेंट से। और अगर आपके कैरेक्टर पे मसल के ऊपर फर है तो फिर स्किन के ऊपर फर है तो पहले स्किन होता है, फिर फर होता है, और फिर वो फर एज एन आउटपुट और स्किन एज एन आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को जाता है। तो अपने यहाँ से मेनली 3 चीजें निकलती हैं, क्लॉथ का जो मैश है वो, ग्रूम के गाइड्स और स्किन। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि हर एक इसको क्लॉथ सिम को, हेयर सिम को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे उनमें कि उनमें हम क्या करते हैं एक्चुअली। सो हम लोग मोस्टली क्लॉथ सिम से स्टार्ट करते हैं अगर कैरेक्टर में क्लॉथ है तो। सो क्लॉथ सिम में की पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपका सबसे पहले आता है टाइप ऑफ फैब्रिक। अभी आपका क्लॉथ कैसा सिमुलेट होगा ये बहुत डिपेंड करता है कि क्लॉथ का फैब्रिक क्या है, वो कॉटन है, डेनिम है, वूल है, मतलब इतने सारे अभी नाम गिन सकते हैं अपन। अगर आप अभी भी अगर आप खुद को भी देखो तो आपने कम से कम 3-4 टाइप के, हर एक बंदे ने 2-3 टाइप के क्लॉथ तो पहन रखे होंगे। हमने जीन्स पहन रखी होगी, स्कर्ट होगा, सिल्क होगा, या वूल होगा, या वूल तो नहीं होगा अभी लेकिन कॉटन की टी शर्ट होगी, शर्ट होगा, सबके डिफरेंट मटेरियल हैं। और अगर आप देखोगे तो सबका फोल्ड्स, सबका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। तो वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप की फैब्रिक को सिम कर रहे हो। और फिर आता है लेयर वाइज सिम। तो हम लोग सिमुलेशन मोस्टली लेयर वाइज करते हैं कि अगर आपके कैरेक्टर ने समझो पैंट और शर्ट पहना है तो पहले हम लोग पैंट को सिम करते हैं, और उसका जो आउटपुट होता है उसको बेक करके उसको एज ए कोलाइडर टी शर्ट के लिए यूज करते हैं। या सपोज आपके कैरेक्टर ने टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहना है तो फिर हम लोग टी शर्ट सिम करेंगे, और उसके आउटपुट को, क्योंकि जैकेट उसके ऊपर है, तो उसके आउटपुट को एज ए कोलाइडर जैकेट के लिए यूज करेंगे। और ये क्या होता है कि इससे एक तो एफिशिएंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, क्योंकि आप सबको एक साथ अगर सिम करना चाहो कर सकते हो, बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और किसी एक में अगर बेस में प्रॉब्लम हुई तो ऊपर वाले में प्रॉब्लम होगी, तो आप फिर से सबको फिक्स करना चाहोगे। तो इसीलिए बेटर है कि लेयर वाइज सिम करना रहता है। एंड देन ये भी आता है कि आप फोटो रियल के लिए सिम कर रहे हो या एनिमेटेड के लिए। फर्क क्या होता है, इन फोटो रियल यू हैव टू मैच इट एग्जैक्टली टू द रियल लाइफ रेफरेंस, and in animated it's more about making it believable and interesting. Like अभी tangled के जो hair हैं it's more towards cartoon type and CG। और अगर आप सीजर के देखोगे जो फर हैं या मसल हैं, it's more toward realism। तो अगर वो रियल नहीं है तो फिर वो फोटो रियल लगेगा नहीं और वो अलग लगेगा। पर कार्टूनी में क्या होता है या एनिमेशन में क्या होता है कि आपका स्नैपी एनिमेशन है, या आपका कैरेक्टर जो है बहुत, लाइक इनक्रेडिबल मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें कैरेक्टर्स मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के एक्शन करते हैं। लाइक वो इलास्टिका है जो कि फुल स्ट्रेच हो जाती है, तो आपका फिर क्लॉथ भी उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। इवन दो इट्स नॉट रियल बट इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड कन्विंसिंग टू द ऑडियंस। एंड देन लास्ट है आपका प्रिजर्विंग द डिटेल्स। तो ये मोस्टली वीएफएक्स में होता है कि कई बार आपके मॉडल में ही क्लॉथ में वो लोग डिटेल स्क्रब करते हैं, लाइक जी ब्रश में या मतलब लेके माया में लेके, तो वो फोल्ड्स जो मॉडलिंग से आता है वो आपको प्रिजर्व करना रहता है। क्योंकि मोस्टली आप देखोगे तो सिमुलेशन अगर आप कोई भी एक पीस ऑफ क्लॉथ लेके करोगे तो वो बिल्कुल लूज हो जाता है। तो वो डिटेल आपको प्रिजर्व रखना है अपनी सिमुलेशन में जो कि मॉडलिंग से आई है, क्योंकि वो ऑन पर्पस बनाया गया है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू हेयर सिम। तो अगर आपके कैरेक्टर को लॉन्ग हेयर है स्पेशली और वो क्लॉथ के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो हम लोग पहले क्लॉथ करते हैं फिर हेयर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका हेयर का टाइप क्या है और लेंथ क्या है। टाइप एज इन लाइक कर्ली हेयर है, वेवी है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ड्रेडलॉक है, क्योंकि सबका सिमुलेशन अलग हो। लाइक कर्ली हेयर थोड़ा स्प्रिंगी होगा, स्ट्रेट हेयर ज्यादा फ्री फ्लो होगा, तो उसके ऊपर भी आपका सिम काफी कुछ डिपेंड करेगा। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि लॉन्ग हेयर में पहले अपन क्लॉथ करते हैं, बाद में अपन हेयर करते हैं, क्लॉथ को एज ए कोलेटर मेश यूज करके। अगेन यहाँ पे भी सेम फंडा आता है, फोटो रियल एंड एनिमेटेड, सेम फंडा वहां पे भी है। एंड देन हेयर सिम में आपको क्लम्प और कर्ल प्रिजर्व करने होते हैं। जैसे अपन क्लॉथ में फोल्ड्स प्रिजर्व करते थे, यहाँ पे अपने को क्लम्प और कर्ल्स प्रिजर्व करने हैं। क्योंकि आपका कर्ली हेयर है और आपने सिम किया और वो स्ट्रेट हो गया तो नहीं चलेगा ना, तो उसके कर्ल्स प्रिजर्व होने चाहिए, सिम भी होना चाहिए पर कर्ल्स प्रिजर्व भी होने चाहिए या क्लम्प्स प्रिजर्व होने चाहिए।
देन आपका आता है स्किन और मसल सिमुलेशन। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और काफी नया भी है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इफेक्ट्स डिपार्टमेंट। लाइक पहले 5-7 साल पहले इतना नहीं होता था, अभी काफी होने लगा है। अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट इज लाइक स्टडी द एनाटॉमी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो भी क्रिएचर, एनिमल, ह्यूमन जिसको आप सिम कर रहे हो, उसका एनाटॉमी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि उसके मसल्स कैसे मूव होते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने बीच में एक बार हम लोग एक एलिफेंट को सिम कर रहे थे, तो थोड़ा उस टाइम पे स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि जो टाइगर होता है उसको 600 मसल होते हैं पूरी बॉडी में, एंड देन ह्यूमंस में इन अस वी हैव 639 मसल्स, और जो एलिफेंट होता है उसके ट्रंक में 40,000 मसल होते हैं। ओनली इन ट्रंक दे हैव 40,000 मसल। So it's so different and interesting. Obviously, we don't have to simulate 40,000 muscles, but it's an interesting fact to know. फिर आपका नेक्स्ट आता है डिफाइन द रिक्वायरमेंट एंड बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, बिकॉज मसल सिम काफी एक्सपेंसिव होता है। मसल में आप लो रेज मसल नहीं बनाते, मोस्टली आपको एफएमएस चाहिए होता है, एंड काफी सारे लेयर्स होते हैं जो आपको सिम करने होते हैं। तो मैंने क्यों कहा एक्सपेंसिव, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी गुड रिजल्ट बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो मसल सिम में हम लोग 4 लेयर में सिम करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मसल सिम, जो कि आपके एक्चुअल मसल्स होते हैं जो कि बोन से कनेक्ट रहते हैं। फिर उसके ऊपर होता है फाशिया सिम। फाशिया एक थिन लेयर ऑफ स्किन होता है जो मसल को पकड़ के रखता है, उसको सिम करते हैं। फिर होता है फैट सिम। फैट एक्चुअली थिक लेयर होता है जो अपने अपने सबकी बॉडी में होता है, थिक लेयर होता है जो फाशिया के ऊपर होता है। तो फाशिया के बाद उसका आउटपुट लेके हम लोग फैट सिम करते हैं, और फैट के ऊपर फिर अपना आता है स्किन सिम, जो कि फाइनल है। तो स्किन सिम मेन होता है जहाँ पे आपके रिंकल्स आते हैं, फोल्ड्स आते हैं, पर जो हम मसल में शुरू करते हैं वहां का इनपुट और वहां का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे आपको लास्ट में आपको स्किन सिम में देखने को मिलता है। तो ये इतना एक प्रोसेस है। पर कई बार क्या होता है कि आपको जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि समटाइम्स सिंपल डिफॉर्मेशंस आल्सो डज दैट ट्रिक। कई बार क्या होता है कि आपका कैरेक्टर ऐसा है कि आपको सारे लेयर करने की जरूरत नहीं है। लाइक सपोज आपका कार्टूनी कैरेक्टर है जहाँ पे आपको एलिफेंट है कार्टूनी, जहाँ पे आपको उसकी बेली में सिर्फ जिगल चाहिए, तो वहां पे आपको मसल और फैट फेशियल लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक फैट लगा के भी उसको जिगल कर सकते हो, उसमें आपको पूरा लेयर करने की जरूरत नहीं है। या कई बार आपके कैरेक्टर फर से फुल्ली कवर होता है जहाँ पे मसल का डिटेल दिखेगा नहीं, बट आपको सिर्फ स्किन सिमुलेशन चाहिए थोड़ा सा, तो फिर वो भी आप सिर्फ स्किन लगा के कर सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट डिफाइन करने करके उसके हिसाब से करते हैं हम लोग इसको। लाइक ऑब्वियसली अगर हल्क है तो फिर आपको सब कुछ लगेगा। देन नेक्स्ट आता है फर या फेदर सिम। तो अगर आपके कैरेक्टर में फोटोरियल कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली स्किन के बाद फर या फेदर होगा। पर अगर रियल मतलब अपना एनिमेटेड कैरेक्टर है तो वहां पे फिर ऑब्वियसली स्किन वगैरह नहीं होगा, तो वहां पे सीधा एनिमेशन के बाद आप फर या ये सिम कर सकते हो, फेदर सिम कर सकते हो। अभी फेदर सिम में की पॉइंट्स क्या होते हैं फेदर या फर सिम में? एक तो क्या है कि फेदर और फर दोनों ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फेदर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मतलब सिम करने में। तो एक्चुअली आप डिफाइन करो कि आपको कौन से एरिया को सिम करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फर, शॉर्ट फर जो होता है या नॉर्मल फर जो होता है वो इतना ज्यादा सिमुलेट नहीं होता। जैसे सपोज अगर मैं अगर अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सर के बाल तो इतने हिल नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्ट हेयर है। सेम फर में भी जो शॉर्ट फर होता है वो इतना ज्यादा नहीं हिलता है। मे बी नेक पार्ट है, बेली पार्ट है, ये सब में ज्यादा मूवमेंट होती है। या अगर किसी एनिमल को लाइक लायन को मेन है तो फिर वो ज्यादा हिलता है। तो डिफाइन करो कि कौन सा एरिया एक्चुअली सिम करना है और उतने को ही सिम करो। और फर में एक दूसरी चीज होती है फर और फेदर में कि ये वो आपस में बहुत इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि नंबर काउंट काफी होता है, लाइक मिलियंस ऑफ फर होते हैं, फेदर होते हैं। तो वो भी एक बहुत ध्यान रखना होता है कि आपके फर खुद में कोलाइड ना करें। एंड देन लास्ट होता है जिटर्स। ये खुद में जो कोलाइड होते हैं फर या फेदर, उससे जिटर काफी होता है, जो कि एक्चुअल रेंडर के बाद ही निकल के आता है। या अगर आपकी फर की थिकनेस बहुत कम है तो भी फर जिटर करता है कई बार। तो वो भी एक ध्यान रखने वाली चीज है कि आपका फर जिटर ना करे। तो आप जब क्यूसी रेंडर करते हो जो हमने देखा, तो वहां पे आप फर क्लोजली चेक करते हो, क्योंकि फिर लाइटिंग में जाने के बाद अगर पूरा एक सीन लाइट हो गया, सब कुछ रेंडर हो गया, वहां से पे मालूम पड़ता है कि आपका फर या फेदर जिटर कर रहा है।
तो काफी एक्सपेंसिव होता है उनके लिए भी और आपके लिए भी, वापस करना और फिर से उनको भेजना। तो ये एक है जो आप थोड़ा ध्यान में रखते हो फर और फेदर को सिम करने टाइम। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन प्रॉप एंड अदर एलिमेंट्स। अब हम लोग ये क्रिएचर के अलावा भी हम लोग काफी कुछ सिम करते हैं अपन। क्या बताऊं मैं, पैराशूट सिम करते हैं, रोप भी करते हैं, फ्लैग, कर्टन, बैग, शू लेसेस तक सिम करते हैं। लाइक फोटो रियल या आपके जो डी डबल होते हैं वहां तो हर एक एलिमेंट सिम होता है। लाइक आप लोगों ने बहुत सारी मूवी में वो शॉट देखा होगा जहाँ पे एक बर्ड आई व्यू होता है और एक शिप के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है या एक किले के ऊपर एक झंडा, लाइक एक फ्लैग वेव हो रहा है, तो वो सब भी हम लोग करते हैं। सो ये एक भी एक प्रॉप का पार्ट होता है। तो अभी आपने सारा ये प्रॉप ये सब सिम वगैरह कर लिया और देन वी मूव टू फाइनलिंग और शॉर्ट पिक, जो हमने देखा था स्टेज पे कि वंस वी सिमुलेशन अप्रूव हो गया पर कुछ फ्रेम में या कहीं पे कुछ पॉप या ट्विक रह गया है या फर कहीं पे एक दो फर कुछ आउट ऑफ ये जा रहा है, मतलब ग्रूम जा रहा है, तो उसके लिए पूरा सिम दोबारा नहीं करते हम लोग। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग फाइनलिंग या शॉर्ट ट्विक करते हैं, इसको वर्टेक्स ट्विक भी बोलते हैं। तो इसके लिए कई बार आप वर्टेक्स ट्विक करते हो या फिर डिफॉर्मेशन जो टूल होते हैं डिफॉर्मर्स लगाते हो, या फिर कई बार हम लोग ग्रूमिंग में भी, समझो आपके गाइड्स तो ठीक है लेकिन ग्रूम में जब वो जा रहा है तो थोड़ा सा ग्रूमिंग में आपको दिख रहा है कि फर जो सिम हो रहा है वहां पे दो चार मतलब फर स्ट्रैंड बाहर निकल रहे हैं। अब वो दो चार के लिए आप पूरा सिम तो दोबारा नहीं करोगे, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप वगैरह पेंट करके उनको कट करते हैं या लेंथ शॉर्ट करते हैं या उनको थोड़ा स्टैटिक कर देते हैं कई बार। तो बहुत सारे ये ट्रिक्स होते हैं इसमें। एक्चुअली ये फाइनलिंग ऐसे ट्रिक वाला मतलब स्टेज है जहाँ पे आप ट्रिक करके कुछ जो फ्रेम वाइज पॉप या ट्विक वो होते हैं वो आप करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ इनहेंस करने के लिए भी फाइनलिंग को यूज करते हैं कि सपोज आपने मसल सिम कर दिया, अच्छा आ रहा है, पर एक सर्टन फ्रेम में आपके क्लाइंट को सुपरवाइजर को थोड़ा सा मसल और चाहिए। अब अब उसके लिए आप पूरा जाके सिम करोगे जो कि ऑलरेडी अप्रूव है बाकी पूरा, तो मतलब नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक क्विकली आप वहां पे एफएफडी लगा के या कोई डिफॉर्मर लगा के आप थोड़ा सा उस एरिया को इनहेंस कर देते हो, तो वो भी एक होता है। एंड ये सब कुछ हो गया, आपका शॉट गया सुपरवाइजर के पास, उसने अप्रूव कर दिया, कांग्रेचुलेशन। तो ये आपका एक फ्लो होता है। और ये जो शॉट अभी ये जो क्लिप यहाँ चल रही है जिफ है, ये शॉट एक्चुअली किसी भी क्रिएचर इफेक्ट्स आर्टिस्ट के लिए एक क्या बोलते हैं ड्रीम शॉट हो सकती है, बिकॉज इसमें क्लॉथ है जो कि बाद में टेयर होता है, मसल है जो बिल्ड होता है और फिर बाद में एक पंच भी है। तो ये मतलब मेरे बहुत फेवरेट शॉट है ये ऑन क्रिएचर इफेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, में हेयर भी है। सो ये आपका क्रिएचर इफेक्ट्स का वर्कफ्लो था। अभी इस पूरे वर्कफ्लो में हम लोग बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम करते हैं, राइट, जो कि हमने देखा भी मॉडलिंग वगैरह, तो उनके साथ हमारा क्या रिलेशन होता है। सो आवर रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन कि हम लोग कौन से स्टेज पर हैं in terms of creature effects. Like when we are doing sim rig, then we are closely connected with modeling, rigging and grooming department, because जो भी हमारा क्लॉथ का ऑप्टिमाइजेशन है, कुछ ट्विक कराना है, कुछ स्किन मसल में चेंजेस है, ग्रूम में कुछ अगर अपने रिक्वायरमेंट है, वी ऑल टेल देम एंड दे केटर इट टू अस। फिर जब हम लोग शॉर्ट प्रोडक्शन में आते हैं तो फिर हमारा ज्यादा डिपेंडेंसी एनिमेशन में हो जाता है, और वहां पे फिर लाइटिंग वालों के लिए और एफेक्ट्स के लिए हम वेंडर है, मतलब हम उनको आउटपुट देते हैं वहां पे। फिर तो जब शॉर्ट प्रोडक्शन में हम काम करते हैं एनिमेशन और लाइटिंग और एफेक्ट्स के बीच में, और उसके पहले हम मॉडलिंग, रिगिंग और ग्रूमिंग के बाद काम करते हैं। और एनिमेशन के साथ स्पेशली हम जब शॉर्ट प्रोडक्शन में होते हैं तो बहुत क्लोजली काम करते हैं, बिकॉज एनिमेशन और लाइटिंग के साथ भी एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है कि अभी शॉर्ट्स में एनिमेशन और सिमुलेशन काफी कोरियोग्राफ्ड होता है, मतलब कई बारी। तो वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि एनिमेशन ठीक है पर सिमुलेशन के रिक्वायरमेंट के लिए उनको कुछ ऐड करना पड़ेगा हमारे लिए, सो देन दे डू इट। कई बार लाइटिंग में ऐसा होता है कि लाइटिंग के हिसाब से अपने को कई बार चीजें क्विकली चेंज करके देनी होती है उनके लिए, तो वहां पे हम उनके साथ डील करते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी आपका एक अच्छा क्या बोलते हैं एक रिलेशन होना भी चाहिए और होता भी है, बिकॉज ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस ही टीम वर्क है, एज ए डिपार्टमेंट क्रिएचर इफेक्ट्स भी और एज अ होल प्रोसेस बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिला के भी जो आउटपुट आता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सिम किया और आउटपुट आ गया। आपका सिम कोई लाइट करता है, कोई कॉम करता है, तब जाके वो जो स्क्रीन पे जो दिखता है एक
शॉट, ब्यूटीफुल शॉट वो बनता है। तो बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी एक अच्छा आपका रिलेशन होना चाहिए और वो रखते भी हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर्स एंड प्लगइन्स, हम लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं। सो जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि व्हेन आई स्टार्टेड तभी माया फॉर होता था खाली, जो कि अभी भी है, उन लोगों ने निकाला नहीं है, माया से रखा है, माया फॉर है अभी भी। तो तभी बस ऐसे 1-2 लाइक मॉड्यूल्स थे। वहाँ से लेके अभी ये 10-15 साल में अभी यू हैव डेडिकेटेड सॉल्वर्स और प्लगइन्स और सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिमुलेशन। तो हम लोग लाइक कैटेगरी वाइज जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्लॉथ सिमुलेशन। क्लॉथ सिमुलेशन में जो सबसे पहला टूल हम अपन यूज करते हैं वो है आपका माया एंड क्लॉथ, जो कि माया के साथ ही आता है। काफी काफी बेसिक में काफी अच्छा टूल है, और बेसिक क्या मतलब काफी अच्छा आउटपुट देता है वीएफएक्स में भी। पर अभी दूसरे टूल्स भी हैं लाइक कोलॉथ, इट्स प्रोनाउंस लाइक QUALOTH। ये प्लगइन है जो कि माया में भी यूज होता है, माया के लिए भी आता है, और ये काफी पावरफुल है आपके फोटोरियल आउटपुट के लिए, क्योंकि ये हाई डेंसिटी मैश को काफी अच्छा हैंडल करता है। देन अभी एक कार्बन करके भी प्लगइन है जो यूज होता है, एंड देन मार्वलस डिजाइनर है जो कि डेडिकेटली क्लॉथ मॉडल करने के लिए यूज होता है। इट्स क्वाइट अमेजिंग अगर आप मार्वलस डिजाइनर देखोगे तो। एंड देन अभी माया में बायोफ्रॉस्ट भी आया है, जो पहले एफएक्स के लिए था, पर अभी बायोफ्रॉस्ट में क्लॉथ सिमुलेशन वगैरह भी शुरू हुआ है। स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज पर काफी प्रॉमिसिंग है। सो क्लॉथ में आप ये सब यूज करते हो। देन वी कम टू हेयर एंड फर सिमुलेशन। तो यहाँ पे आप माया का एनहेयर क्लासिक यूज करते हो, अभी भी काफी यूज होता है, काफी पावरफुल है, मतलब हम लोग भी सबको लोग यूज करते हैं। देन यू हैव एक्सजेन। तो एक्सजेन में ग्रूमिंग भी होता है और एक बेसिक सिमुलेशन भी एक्सजेन में अच्छा खासा निकल सकता है, लाइक विंड वगैरह एम्बिएंट काफी अच्छा निकलता है। और फिर आपका यति है, ऑर्नेट्रिक्स है, ये सब मोस्टली ग्रूमिंग बेस्ड है, पर इनमें भी सिमुलेशन मॉड्यूल रहता है, और ये सब प्लगइन है जो कि माया या मैक्स में भी यूज होता है। देन मसल और स्किन सिमुलेशन। तो मसल और स्किन सिमुलेशन में आपके पास माया मसल है जो कि माया में ही आता है, एंड देन अभी जीवा है। जीवा इज अ डेडिकेटेड plugin for muscle simulation, for muscle, skin and all those things. एंड जीवा का आउटपुट काफी मतलब फोटोरियल, काफी ज्यादा फोटोरियल और काफी ज्यादा एडवांस्ड है। इट्स लाइक पुशिंग द लिमिट्स। मतलब आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू गो एंड चेक जीवा डायनामिक्स, बाद में आप देखना। और आई थिंक उनका लाइक उनका एक स्टूडेंट वर्जन भी है, आप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हो, और काफी काफी मतलब फैसिनेटिंग है जीवा देखने के लिए, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो आप जीवा एक्सप्लोर करो, अगर आप कभी मसल में करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ माया मसल एंड देन अब जीवा में एक बार ट्राई करना। फिर कई बार हम लोग स्किन सिमुलेशन करने के लिए एंड क्लॉथ और क्लॉथ भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम एंड क्लॉथ है तो सिर्फ क्लॉथ ही सिम करते हैं, एंड क्लॉथ को हम लोग मसल स्किन के लिए भी यूज करते हैं, कई बार क्लॉथ को भी यूज करते हैं। तो ये तो आपके लाइक डिफरेंट ये होगा। कई फिर आपके पास हुडनी है, अलग सॉफ्टवेयर, जो हुडनी में वेलम है, जो कि काफी सिमुलेशन लाइक हैवी है और काफी डेडिकेटेड, मतलब एक ही सॉल्वर है जो आपका हेयर फर मसल सब में काम करता है, जो कि काफी यूजफुल होता है अगर आप एक ही सॉल्वर में काम कर रहे हो। तो देन यू हैव ब्लेंडर है, सिनेमा 4D है, तो इतने सारे ऑप्शंस अभी आ गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ये जो हम लोग 3D के लिए यूज कर रहे हैं, अभी गेमिंग और वीआर में भी काफी आप देखोगे तो रियल टाइम सिमुलेशन होता है, जिसमें यूनिटी भी यूज में भी होता है, अभी अनरियल में होता है, एनवीडिया हेयरवर्क्स में काफी हेयर सिमुलेशन होता है। अभी मैंने भी लाइक हम लोगों ने नाइट एट द म्यूजियम पे यूज किया था हेयरवर्क्स। सो अभी काफी ऑप्शंस हो गए हैं सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिएचर इफेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये इट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स काइंड ऑफ लाइक अपना प्रेजेंटेशन, थोड़ा एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, हम लोग माया में आएंगे बाद में। सो फॉर एक बीइंग अ क्रिएचर इफेक्ट्स टीडी आपको क्या करना चाहिए, या क्या आपका पाथ होना चाहिए? सो फर्स्ट थिंग इज लाइक फोकस ऑन बेसिक्स देन टूल। अभी टूल्स तो हमने देखे बहुत सारे हो गए हैं, मतलब जब से शुरू किया था और अभी से आके, पर आपके बेसिक्स स्ट्रांग रखो। लाइक जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो आप माया का बेसिक सीख रहे हो, वो सब आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्लगइन्स अपडेट होता रहेगा, आता रहेगा, पर अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्लगइन से मैटर ऑफ टाइम आप उसको सीख लोगे। लाइक ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी अपने फॉर ए क्रिएचर इफेक्ट्स आर्टिस्ट इज अ वेरी क्या बोलते हैं, अपना लाइफलाइन टाइप चीज है। मतलब ग्रेविटी सब जगह ही होती है ना, मतलब आप प्लगइन कोई भी हो, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, बिना ग्रेविटी के क्लॉथ नहीं गिरने वाला है। तो वो आपको ग्रेविटी का फंडा क्लियर होना चाहिए।
आपको टाइम एंड स्पेस का फंडा क्लियर होना चाहिए, स्केल का फंडा क्लियर होना चाहिए, या सिमुलेशन में जो आपको सपोज टर्बुलेंस है या बेंड होता है क्लॉक में, स्ट्रेच होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या होता है, कैसे काम करता है, ताकि सॉफ्टवेयर प्लगइन चेंज हो पर आपका बेसिक आपको पता है। एंड देन इन्वेस्ट टाइम इन R&D। सिंस क्रिएचर इफेक्ट्स रिलेटिवली नया है और काफी डेवलप भी हो रहा है, तो आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम R&D में भी स्पेंड करना चाहिए, नई चीजों में भी और जो पहले से हैं उनमें भी, कि क्या क्या है उनमें और क्या चल रहा है। फिर नॉलेज ऑफ रिगिंग, एनिमेशन एंड स्क्रिप्टिंग इज अ बिग प्लस, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम लोग जब बोलते हैं सिम रिग, उसमें ही रिगिंग टर्म है, रिग टर्म है। तो आपको अगर रिगिंग का थोड़ा नॉलेज है तो आपको वो काफी हेल्प करेगा आपके सिम रिग क्रिएट करने में भी, और जब आप शॉर्ट ट्वीक कर रहे हो या सिमुलेशन भी कर रहे हो। एंड सेम गोज फॉर एनिमेशन, बिकॉज जैसा हमने पहले बात किया था कि ये इट्स कॉल्ड टेक्निकल एनिमेशन एज वेल, तो उसमें भी एनिमेशन तो है ही ना। तो आपको अगर एनिमेशन के प्रिंसिपल्स पता हैं, आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन भी आता है, तो फॉलो थ्रू वगैरह, क्योंकि इवन दो यू आर डूइंग डायनेमिक सिमुलेशन, आपको एनिमेशन का बेसिक नॉलेज अगर है तो वो काफी हेल्पफुल होता है और होना भी चाहिए थोड़ा सा। एंड अभी स्क्रिप्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब आई वोंट से कि इसके बिना नहीं कर सकते, पर काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी कैसा है कि जैसे बाइफ्रॉस्ट है या हुडनी है, ये सब में विजुअल स्क्रिप्टिंग भी होता है काफी। और अगर आपको पाइथन वगैरह आता है तो क्या है कि आप लाइक सिमुलेशन में आप काफी कुछ खुद टूल्स वगैरह खुद के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। लाइक एक्सजेन में भी काफी बेसिक स्क्रिप्टिंग से काफी कुछ किया जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट इज फॉलो द रेफरेंस। जब भी आप स्टार्टिंग में सिमुलेशन शुरू करते हो, तो जब आप सीख रहे हो स्पेशली, तो हमेशा रेफरेंस फॉलो करके करो, क्योंकि आप वैसे कुछ भी सिम करोगे, इट विल बी डायनामिक और सिमुलेशन होगा, पर जब तक आपने रेफरेंस लेके नहीं किया, आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना था, आपने आउटपुट अचीव किया कि नहीं। तो हमेशा एक रेफरेंस लो, आपके घर में जो पर्दे हैं, अगर आप क्लॉथ सिम कर रहे हो तो उनका रेफरेंस लो, अगर आप हेयर सिम कर रहे हो तो भी एक मतलब वीडियो यूट्यूब पे देखो, या फिर आप जो रियल लाइफ कर रहे हो उसको शूट करो। तो हमेशा रेफरेंस करके करो, क्योंकि एक बार अगर आप रेफरेंस को अचीव कर सकते हो ना, तो फिर बाद में बहुत ईजी है आपके लिए कि आप अपना उसमें क्रिएटिविटी डाल के फिर उसको आप चेंज कर सकते हो। लाइक जैसे कि पता है, आप म्यूजिक सीख रहे होते हो तो फर्स्ट लर्न विद द रूल्स एंड देन ब्रेक देम ऑल। तो वही है कि पहले आप सीखो, पूरा रूल से सीखो, बाद में आपको ब्रेक करना है, आप बाद में एक्सपेरिमेंट करना है, वो बाद में करो, पर पहले विथ रूल्स एंड विथ रेफरेंस प्रॉपर उसको सीखो। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व, बिकॉज ये पूरे वीएफएक्स के लिए ही है, और फीचर इफेक्ट्स में तो खासकर है कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आपके जो घर पे पेट हैं, या आप जानवरों को देखते हो, या फिर आप आसपास ही देखो कितने सारे क्लॉथ ऑब्जेक्ट होते हैं, या जिम जाते हो तो मसल भी आपको काफी मतलब देखने को मिलता है। तो वो सबको ऑब्जर्व करो कि मसल्स कैसे मूव होते हैं। जिम में एक्चुअली मेरे एक दो फ्रेंड हैं जो डिपार्टमेंट में हैं, और वो लोग हैवी लाइक जिम वाले बंदे हैं, तो वो तो जिम में भी जाते हैं और बाद में आके यही बात करते हैं कि अरे ये अपना ये बाइसेप ऐसा मूव हो रहा था, ट्राइप ऐसा मूव हो रहा था। तो वो ऑब्जर्वेशन रखो, मतलब जब भी आप ये कर रहे हो। सो दिस इज ऑल, ये आप फॉलो करो। और क्रिएचर इफेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है, एंड आई थिंक नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। Thanks, DK. We will take some questions now. Basic Yes. question to start with. Ame Joshi is asking, sir, what is a jitter? व्हाट इज अ जिटर? जिटर क्या होता है कि जब आपके फर में या इसमें नॉइज आती है, या बहुत तेजी से अगर मूव हो रहा है फर, तो वो जिटर इफेक्ट देता है। जैसे इसलिए कि आपको कोई चीज बहुत तेजी से हिल रही है, तो इट यू विल फील, आई मीन आपको ऐसा फील आएगा कि वो जिटर हो रहा है, तो उसको आप जिटर बोलते हैं। जब आपका फर या मैश बहुत तेजी से ऐसा मूव हो रहा है, तो वो जिटर होता है। Okay, another question by Bhumi. Sir, can you simplify, in simplified definition or example, explain SimRig? सिमरिग, ओके। सो भूमि कैसा है ना, सिमरिग इज स्ट्रक्चर, जैसे अपना रिग होता है, रिगिंग में रिग होता में कैरेक्टर का रिग होता है, जहाँ पे आप उसमें बोन्स लगाते हो, आप उसमें वेट पेंट करते हो, और ताकि एनिमेशन उसको एनिमेट कर सके। वैसे ही अपना सिम रिग होता है, जहाँ पे आप आपका जो जिस ऑब्जेक्ट को आपको सिमुलेट करना है, लाइक जो क्लॉथ लेते हैं एग्जांपल, तो
अभी कैसा है कि यहाँ पे एनिमेशन में कैसा होता है ना कि रिगिंग ने रिग बना दिया और फिर कोई उसको मैनुअली पकड़ के रिग को मूव कर रहा है, तो वो एनिमेट होता है। पर अपने इसमें क्या होता है सिम रिग में कि यहाँ पे कोई मैनुअली उसको एनिमेट नहीं कर रहा है, सिम रिग ऐसा डायनेमिक होना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्लॉथ है, उसको या हेयर है, उसको आपको डायनेमिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो आप उसको डायनेमिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, वो एक हो गया। फिर आपको ये भी डिफाइन करना होता है कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट तो हो गया, पर ये कोलाइड किससे करेगा? अगर आप एक क्लॉथ को अगर आप सीधा सिर्फ डायनेमिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके छोड़ दोगे तो वो तो ग्रेविटी से नीचे ही गिरेगा। अगर बीच में एक स्फीयर भी है, उसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आपने बताया नहीं है कि इस पीस ऑफ क्लॉथ को इस स्फीयर के साथ कोलाइड होना है। तो आप कोलिजन मैच डिफाइन करते हो। आप कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं कि आप वर्टेक्स पकड़ के उसको बताते हो कि आपको ये वाला एरिया जो है कंस्ट्रेंट करना है, यहाँ पे अपने को सिम नहीं चाहिए, या यहाँ पे ये अटकना चाहिए इससे, तो वो आप डिफाइन करते हो। ये सब जब आप डिफाइन करते हो और एक रिग बनाते हो, सेटअप बनाते हो, इसको सिमरिग बोलते हैं, जो कि आपको डायनेमिक मूवमेंट देता है आपके एलिमेंट में, जो कि क्लॉथ हो सकता है, फर हो सकता है, या मसल हो सकता है। Okay. Another question by Ajay. He's asking you, tell us from your experience of working in this industry, matlab, how much hours do you work in a single day? Do you get holidays at all? Start with being a fresher to what you do now. Okay, there's a lot of difference in terms of how much hours do you work as a fresher and how much you work as you grow with experience and obviously designation. नहीं, आई वुड से सर, मतलब ऑब्वियसली देयर शुड बी डेडिकेटेड आवर्स एंड ऑल दैट, मतलब एक टाइम होना चाहिए, पर like for me when I'm doing it, it's more about my passion and hobby actually. तो like कभी ऐसे घंटे सोचे नहीं actually, honestly speaking, like I never thought about like कितने घंटे काम कर रहे हैं, because like in even you know like in Zika days like we used to work like for days. Mm. So from that time और अभी यहाँ पर हूँ मैं, तो 9 to 6 ही है, तो yeah, like I would say अभी तो काफी स्टैंडर्ड हो गया है, but it's if you enjoy it then I think it doesn't matter actually. But do you think that you've become more organized and over a period of time in terms of your learning and experience? That Yes sir, जो actually time पहले लगता था वो कम लगता है अभी also with experience. हाँ, ये है लाइक इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड एंड इनिशियल इयर्स, वहाँ पे लर्निंग भी काफी रहती है और आपको सीखने को भी काफी कुछ रहता है। सो यू स्पेंड मोर टाइम एंड आपको आपको पता ही नहीं होता ऑर्गेनाइज होना। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक व्हेन आई वेंट टू प्राणा, वहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा, लाइक खुद को ऑर्गेनाइज करना, टीम के साथ ऑर्गेनाइज होना। तो आप एक्सपीरियंस के साथ आप अपने काम को, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, आप प्लानिंग बेटर कर पाते हो कि आपका आपका और बाकी लोगों का भी काम कैसे एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज हो। तो ओवर द इयर्स मतलब काफी ऑर्गेनाइज हो गया है अभी तो। Hmm. Okay, Vijay is asking, is there any way to get Ziva free for a month? Or यस more एक्चुअली, than a यस or फॉर अ more? मंथ यू कैन गेट, मोर देन अ मंथ तो एक्चुअली मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मोर देन अ मंथ यू हैव टू बाय इट एक्चुअली। Okay, okay. कोई PLE version नहीं है. नहीं, 1 महीने के लिए दे आर गिविंग इट फॉर 1 मंथ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बाय। Okay. Okay. Tanvi is asking, to correct any mistakes, do you have to make frame by frame changes or directly the model itself? आई थिंक शी इज आस्किंग अबाउट फाइनलिंग, जब हम लोग शॉर्ट ट्वीक करते हैं, इफ आई एम नॉट Uh, मिस्टेक। I सो think so. या सो सी, हम लोग फाइनलिंग में कुछ फ्रेम का ही ट्वीक करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक फ्रेम पे ट्वीक करें। अगर हर एक फ्रेम पे करना है देन वी प्रेफर टू सिमुलेट इट अगेन। पर अगर आपका 100 फ्रेम का शॉट है जहाँ पे समझो टोटल 4 फ्रेम में आपको कुछ ट्वीक करना है, देन यू वुड रादर प्रेफर टू ट्वीक इट, वर्टेक्स मॉडिफाई करके या वर्टेक्स ट्वीक करके आप उसको सॉल्व करोगे, रादर देन गोइंग बैक इनटू सिमुलेशन एंड ये करने का। तो ऐसा नहीं है कि हर एक फ्रेम पे करते हैं, कुछ फ्रेम्स पे करते हैं, लाइक 4 फ्रेम, 2 फ्रेम का पॉप है, वैसा करते हैं। Okay. Okay. Rohit is asking, so you said something like using T-shirt as a collider for jacket. You यस, have to make the simulation of T-shirt. yes, we have to bake the simulation. And sir, I want to show them something in Maya, so should I like finish the Q&A and then show them, or can I show it now? I think you can show them. I'll take some questions more. कुछ जिसमें भी demo दिखाना होगा तो better हो.
ठीक है, तो मैं I'll show them. I hope you guys can see my Maya screen. Yes, yes, we can. So guys, मैं like I've made this a very basic setup. So don't judge my simulation because मैंने simulation पे बहुत time spend नहीं किया है, and it's a motion capture data. But yeah, it's more for showing you guys the extraction actually. So yeah, this is one thing I wanted to share you guys. Like mostly क्या होता है कि जब आप क्रिएचर इफेक्ट्स कर रहे हो तो आपके पास एनिमेशन डेटा नहीं होता है टू मेक द सिमुलेशन, बिकॉज एनिमेशन नहीं तो आप सिमुलेशन कैसे करोगे. So there are few sites like this one I downloaded from Mixamo, Mixamo, जहाँ पे आपको फ्री मोशन कैप्चर डेटा मिलता है बहुत सारा, और विथ बेसिक रिग भी मिलता है. तो आप आपका खुद का मॉडल भी अपलोड कर सकते हो, उनका भी ले सकते हो, एंड देन यू कैन पुट योर क्लॉथ एंड थिंग्स ऑन दैट, एंड तो काफी यूजफुल लगा मुझे ये. तो ये मैंने एक ऐसी बेसिक क्लॉथ सिम किया था, अभी कंप्लीट करना है. बट सो इफ यू सी, सो ये जैसे मैंने आपको बोला ये मेरा सेटअप है क्लॉथ का. तो मैंने इसको एक ग्रुप में कर दिया, GRP क्लॉथ. और Okay, Darshan, what we can do is you can switch off your video so this can be full screen. okay, it's not full screen. So right click. Now it's full screen. No, just switch off your webcam. So we'll Okay. right click on the webcam Yeah. so we can see it more bigger. Better? Yes, yeah, much better. Yeah. So I'll play it again anyways. Right. So like this is a very basic setup. मैंने एक single PC लिया है, but if you can see, like I have grouped them in one group, like my cloth. So constraint को constraint का name दिया है color के लिए. This is my rigid body. So this is body. तो ये जो आपका body है, ये आपका जो अपन पूछ रहे थे ना कि collider, तो ये आपका collider है. So this is your collision body mesh and this is your dynamic mesh. ये आपका जो क्लॉथ है ये डायनामिक है और ये इसके साथ कोलाइड हो रहा है, ठीक है. Okay. एंड देन ये न्यूक्लियस है जो कि सॉल्वर होता है, जो हार्ट ऑफ योर सिमुलेशन. कोई भी सिमुलेशन में एक सॉल्वर होता है, तो एंड क्लॉथ में न्यूक्लियस होता है, एंड हेयर में भी न्यूक्लियस होता है. तो ये और आप प्रॉपर इसकी नेमिंग रखते हैं. एंड देन समवन आस्क्ड मी अबाउट द क्लॉथ मैश आल्सो, लाइक व्हाट इज क्लॉथ मैश. वो भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं. Zoom in. Yeah, this is cloth. So if you see, ये जो क्लॉथ है ये यहाँ पे मैंने थिकनेस दी है इसको, ताकि ये लगे कि ये डबल लेयर है, लाइक ये थिक क्लॉथ है दिस वन हियर, और यहाँ पे जो कि नॉर्मली होता है थिक होता है. पर व्हेन हम लोग जो सिमुलेट कर रहे हैं वो मैंने उसको सिमुलेट नहीं किया है. आई हैव सिमुलेटेड दिस मैश व्हिच इज अ सिंगल लेयर क्लॉथ. ये सिंगल लेयर है, इसको मैंने सिमुलेट किया है, और बाद में मैंने इसको इस वाले को डबल लेयर को इसके साथ रैप किया है. यू सी रैप नोड यहाँ पे रैप किया है ताकि वो उसका जो सिमुलेशन है वो इसमें आ सके. तो मैं सिंगल लेयर को सिम कर रहा हूँ और उसको जो एक्चुअल मैश है उसके साथ में रैप कर रहा हूँ. Okay. Achha, another question by Vijay is also after rigging and binding the model, can the model be scaled? Can the same be done after adding Ziva muscles? हाँ, आप कर सकते हो. एक्चुअली उसमें आपको लाइक वैसे कंट्रोल्स ऐड करने पड़ेंगे जहाँ पे आप उसको स्केल कर सकते हो, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्केल कर रहे हो. लाइक नॉर्मली हम लोग फर में भी या इसमें भी मतलब मसल में भी अगर आप लाइक 0.1 0.2 स्केल कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स. पर अगर आपने कैरेक्टर को डबल कर दिया देन यू माइट हैव टू रिविजिट योर मसल्स और लाइक रिग. Okay. Achha, Vinod is asking, since CFX need good systems, so any tips for those who do not have systems? I have no idea. No. So yeah, this is true. CFX need a little high-end system. Like एक अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए आपको, और अच्छे like I would say you can start with 8 GB RAM and like at least क्या बोलते हैं एक अच्छा NVIDIA ग्राफिक कार्ड.
बिकॉज एक बेसिक सिस्टम पे थोड़ा मुश्किल होता है सिमुलेशन करना, बिकॉज इट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस. Is it something that you can also kind of optimize your model and make sure that it's not too heavy for या simulation? Okay. दैट्स ट्रू सर. मतलब वो काफी डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कितना, लाइक मॉडल या क्लॉथ कितना हैवी है. उसके लिए हम लोग जब जैसे बेसिक क्लॉथ करते हैं तो हम लोग एक सिंगल लेयर लेते हैं, और कई बार अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग लो पॉली मेश पे भी करते हैं उसको. लो पॉली इन द सेंस कि नॉट लाइक गेमिंग टाइप, बट स्मूथ से जो एक पहले का वर्जन होता है अपना, जो फर्स्ट वर्जन होता है उस पर भी करते हैं. तो Okay. पर और कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी आप कितना लगाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सिमरिक कितना हैवी है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिमुलेशन कितना हैवी होगा. Okay. Okay. Siddesh is asking, in the movie Coco, how are the skin and bones shown? In Coco, I think for the skeleton characters there is no skin actually; it's only bones. Mhm. Like the like model which is animating is actually bones. They have modeled the bones. They added cloth on that. Okay. Okay. Another question is, from where do you get the references for creatures which are specially made or customized? Which we can't take the reference from real world because they don't exist. So where do you get the references? मतलब ना, from your experience, क्योंकि ये Yes, so actually it's a fantasy thing. correct, true. So क्या होता है ना कि जब ऐसा कोई क्रिएचर बनता है, सो पहले एक अच्छा खासा प्री प्रोडक्शन आता है उसके लिए. सपोज आपने लाइक अवतार के कैरेक्टर्स देखे होंगे, जो वो क्रिएचर्स हैं, उनके जो हॉर्सेस हैं वो काफी डिफरेंट टाइप के हॉर्सेस हैं. बांशी बोलते हैं उनको, लाइक दे कॉल्ड इट बांशी. तो वो हॉर्स हैं पर दे आर हाइब्रिड और डिफरेंट टाइप है, लाइक एलियन स्पीसीज है. तो पहले एक पूरा प्री प्रोडक्शन होता है, उनकी स्केचिंग होती है कि 2D में पहले वो देखते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा मूव करेगा, इसके मसल्स कैसे मूव करेंगे, वो सब भी होता है. और फिर उसका जो क्लोजर रेफरेंस है, लाइक अगर हम बांशी की बात करें तो वो हॉर्स के टाइप का था, तो हम क्लोजर हॉर्स को देखते हैं कि हॉर्स कैसे मूव करता है, और उस पे थोड़ा हम अपना, जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ा हम अपना वो भी ऐड करते हैं, इनपुट ऐड करते हैं कि हाँ अभी ये अगर हॉर्स मूव करेगा थोड़ा लाइक एक्सेलरेट होके, या ये हाइब्रिड हॉर्स है तो ये कैसा मूव करेगा. तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वहां से आता है, एंड देन उस पे आप अपना ये ऐड करते हो, जो आपका इमेजिनेशन है और आपकी क्रिएटिविटी वो ऐड करते हो. पर काफी सारा प्री प्रोडक्शन वर्क भी होता है इसके पहले. Okay. Okay. Another question is sim rigged by rigging artists or is it done by FX artists? No, sim rigs are made by creature effects artist, by us creature effects artist. Okay. Cinema 4D software is used in which 3D designing? Basically, it's a 3D software. Yes. So used for broadcast actually design, but obviously it can be used for anything. In मोशन terms of ग्राफिक्स में भी काफी यूज होता है एक्चुअली सिनेमा 4D. how many years it took you to enter into the industry? Do you love your job? How many Parin, years? how many years it took you to enter into industry? मतलब okay, you started off uh, as maybe a generalist. So how long did it take you to actually get into becoming a specialist? So and I would say, yeah, sorry sir, complete the question. go ahead. कितना time लगा? क्योंकि specialization in terms of industry, it must have took you some time when you were in DQ actually. Yeah, actually I would say I'm still learning, because with every studio it's a lot to learn, और इंडस्ट्री भी काफी इम्प्रूव लाइक काफी तेजी से डेवलप हो रही है. बट हाँ मतलब व्हेन आई केम टू प्राणा एंड आफ्टर आई वर्क इन प्राणा फॉर आई थिंक 5 years, तो थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो गया था. लाइक डीक्यू में हम लोग सिर्फ एक मतलब फर का पार्ट कर रहे थे. व्हेन आई केम इनटू प्राणा तो वहां पे इट वाज मोर इनटू लाइक डिफरेंट मीडियम्स थे, और आपने ग्रूमिंग भी करी, फिर हमने थोड़ा सिम भी किया, एंड लेटर आई वाज हेडिंग द सीएफएक्स डिपार्टमेंट व्हिच वाज ग्रूमिंग एंड टेकन इन बोथ इन प्राणा. तो मतलब लाइक आई वुड से एक 4-5 साल तो आपको लग जाता है to become an expert at least, because
क्रिएचर इफेक्ट्स का एक पार्ट ये भी है कि यू आर डीलिंग विद 3-4 डिफरेंट एलिमेंट्स, इट नॉट जस्ट वन Right. एलिमेंट. You have to know cloth, hair, fur, and now muscle as well. So it takes little time, but you can start with like basic cloth and hair, and then gradually go into muscles and everything. Right. Okay. I think, Darshan, you should also, we were talking at before the start of the webinar. You also, maybe you can share this information regarding one of your colleague who was working with Rana, I guess, who's now in Vancouver doing In Ziva, yeah, in Ziva, sorry, in Ziva. Yeah, and how from being a rigging artist, I guess, he the rigging went on. supervisor when I joined Prana actually. Right. When I joined, he was a rigging. No, when I joined, he was a lead, and then he became supervisor in Prana. And then his name is Christopher Makwana. He's a very good friend and an amazing artist, I would say, amazing person. So So the point is that I wanted you to explain that you obviously start somewhere. Maybe as a rigging artist, he was known. He might have a lot of knowledge over the years regarding creature effects, and over the years he's developed his knowledge and went on to become a creature effects artist at Ziva. So you, like you said, you're learning on the job in every studios every day. Not so you're not perfect. You're not perfect at any given point. You have to be. Now you're as good as your last job that you did. So that's what I would want you to share in terms of key. Now every job you learn something new, and every new project has a new challenge as well. yes. So first I'll tell you about Christopher Makwana. So when I joined Prana, he was a rigging lead, and then obviously he became a rigging supervisor. And then from there he went to Barajon. So even he was in Prana, and when we were working in KJFX department, we worked very closely with rigging, because उस time हमारे लिए especially muscle was very new to us. Like we just started doing muscle and skin. So and it has a heavy input from rigging, and rigging wale bhi kafi enthusiastic the, और they were also doing a lot of R&D in muscle. So it was, I would say in Prana it was more like a collaborative effort for especially for muscle between rigging and creature effects. तो वहां से ही मतलब उनके साथ हमारा काफी इंटरेक्शन था, और वो भी देखते थे हम लोगों को. तो he was very very much interested in doing creatures and muscles and all. So later he did some R&D in Houdini as well, and बाद में he kind of specifically did some R&D in Ziva. He made his own character and did muscles and all. And I think Ziva has published his work like early this year or sometime. They have published his work in their site. And a couple of days back, I came to know that now he got a job in Ziva as a creature effects 3D. So I mean, it's a dream, I would say. Like you're working for Ziva, your work getting published by Ziva, and then you get a job in Ziva. So even for me, like from DQ, like where I started my first R&D on fur, and then in Prana, like when I came to Prana, it was more on like shave and haircut. Shave and haircut is a plugin for doing grooming. So like we doing heavily on shave and haircut, and then there I learned actually and hair in Prana, like an hair simulation, and then later like and cloth and lot of other grooming tools. And then at some point Prana bought Rhythm and Hues, the company who did Life of Pi. Life. So yeah, so with Rhythm and Hues we had their technology as well. Like there was a software called Voodoo. Voodoo is still there. So Voodoo was especially for creature effects, a dedicated software for creature effects and rigging and animation, like mostly mainly to deal with the creatures, not the set part or like modeling part. So वुडू में मैंने काफी कुछ सीखा और काफी सारे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए वुडू में काम करके. एंड देन अगेन विथ लाइक अभी हम लोग लास्ट जब मैंने प्राणा छोड़ा तो हम लोग वुडनी में R&D कर रहे थे. लाइक सम ऑफ माय आर्टिस्ट जो मेरे साथ काम करते हैं काफी अच्छा वुडनी करते हैं. तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है जो चलता ही रहता है. और अभी यहाँ पे फ्रेम स्टोर में आने के बाद तो अभी लग रहा है कि और कितना कुछ सीखना है, बिकॉज अगेन दे हैव नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी एंड पाइपलाइन एंड एवरीथिंग एंड देयर वर्क. Okay, you talked about Unreal in one of the projects that you used. One of Yes. the interesting question by Vinod is how do real-time rendering works with character simulations?
And So, what's the pipeline for real time? And is the pipeline different for games and movies done on real time? see, honestly speaking, pipeline wise, I am not the correct person to tell you the Unreal pipeline, but the kind of work we have done at that point. So in Unreal, you don't have to render the output in Unreal actually. That's the best part. You don't have to like render like how we render stuff. It's like real time output. So there was a plugin called NVIDIA Hairwork, which was compatible with Unreal. So you do your kind of Simric kind of thing in Unreal, where you set your preset and then you import that into Unreal, and based on your preset with your character movement, it will real time simulate, real time collide. Hmm. Okay. Another thing which I can tell is that normally for movies, specifically movies which have a lot of kind of character simulations. Okay, uh, in that sense, more or less, previous में बहुत use होता है to Yes, understand the this is where Unreal or Unity as a engine game engine is being used to understand not the previous part and games where mostly these simulations are already inbuilt, so you don't have to kind of create something. A lot of stuff are already inbuilt into the system, the engine itself. All you true. need to is apply and customize it. So Yes, there are sometimes you don't have to even code things. You just have to cut, paste, and apply, and things move, and now you can see it real time. All these simulations. So that's how it works in terms of games and movies. Okay. Okay. How can I start as a fresher and apply in this industry? Jyoti is asking. Do you need a specific showreel? What should be in the showreel, Darshan? yeah. So showreels are actually very important. मतलब आप कहीं पे भी अप्लाई करो showreel तो चाहिए. And especially अगर creature effects के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो. So you don't have to do muscle and all, to be honest. Initially if you can do it's better, but you can start with cloth sim. But mostly I have seen कि लोग walk cycle लेते हैं और उस पे cloth लगा के उसको sim कर देते हैं. So I would say don't do just a walk cycle. Do some take some performance. If you have an animator friend or if you can do animation, well and good. Otherwise, talk to your animator friend. Take some good animation, some good action. Like your character is jumping or have some performance. So he has some body movement rather than only walk cycle or run cycle. Or like you can download some data from these sites also, like जो मैंने बताया आपको motion capture के. And then उसके ऊपर आप cloth वगैरह करो. And if you are doing hair simulation, again same thing. Like give it some dynamic movement. Like have some long hair simulation, like a ponytail or a braid, something like that. एक चीज और I wanted to ask you because normally to you might be going through showreels of students who might be applying as freshers also. Now, a lot of a big mistake that a lot of students do is that they make their showreel too loud. Loud in the sense कि चाहे वो simulation हो चाहे वो animation हो, it is too much of everything. ठीक है. Hmm. So as somebody who's a creative ना kind of who's doing a creative evaluation of a showreel, और जैसे आपने बोला कि कोई एनिमेटर फ्रेंड का एनिमेशन लीजिए, उसके ऊपर आप Hmm. क्लॉथ या हेयर या उस टाइप का ना सिमुलेशन कीजिए. सो डू यू लुक फॉर सटलिटी जो नॉर्मली एनिमेशन मूवीज में होती है, नॉर्मली एक्टिंग और परफॉर्मेंस में, कि हर चीज लाउड नहीं होता अंटिल इज इट एन एक्शन और कोई बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत एक्टिव सीन हो. So normally a character is walking, sitting, doing something, और ना कुछ performance point of view से, so उसका hair cloth normal होता है. It is not something which is moving all around. So do you also see something which is subtle in the
ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, एनिमेशन बहुत प्रॉपर ना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन एनिमेशन किया है या सिमुलेशन किया है स्टूडेंट ने इन शोरील. इज दिस आल्सो समथिंग दैट यू लुक एट? यस एक्चुअली सर, बिकॉज क्या होता है ना कि आपका सिमुलेशन जो आपका सीन है उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आपका सिमुलेशन इतना लाउड है कि सिर्फ वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है. या इट इज नॉट नेसेसरी. अगर आपका एनिमेशन जैसा है उसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. हम लोग अपने टर्म्स में हमेशा बात करते हैं कि जो अपना डिपार्टमेंट है, हम लोग का चेरी वाला डिपार्टमेंट है, हम लोग चेरी लगाते हैं केक के ऊपर. तो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि चेरी ऑन टॉप वाला डिपार्टमेंट है अपना, कि एनिमेशन बहुत अच्छा हो गया, हम थोड़ा चेरी लगा देते हैं. तो वो थोड़ा सा लगाओ और उसको ऐसा रखो कि वो कॉम्प्लीमेंट करे उस चीज को. ऐसा मत करो कि ना आपका ऐसा मतलब आपने हमेशा हल्क नहीं बनाना है. कई बार क्या बोलते हैं, सिंपल किंग जूलियन से भी काम चल जाता है, या आपके कई बार जो नॉर्मल ऐसे पू टाइप के कैरेक्टर है जहाँ पे आपको बहुत हल्का सा जिगल है उसकी बॉडी में, वो भी चलता है. तो वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी आप कर रहे हो उससे. और एक चीज सर मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्टोरीज में मैंने बहुत देखी है स्पेशली स्टूडेंट्स के, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोग ये कर रहे थे अपना एक हमने CFX का ट्रेनिंग सेशन किया था प्राणा में, तो उस टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स देखे थे. मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फ्लैग बनाते हैं क्लॉथ सीन के लिए, या एक टेबल के ऊपर क्लॉथ गिराते हैं, और बहुत बहुत तो बलून कर देते हैं. तो मैं बोलूंगा आई वुड से लाइक ट्राई टू लाइक अवॉइड इट. और अगर आप फ्लैग भी बना रहे हो तो फिर उसको ऐसा फोटो रियल फ्लैग बनाओ, मतलब लगना चाहिए कि हाँ लाइक इट्स अ लाइक रियल फ्लैग. मतलब एक बेसिक आपने लगाया उसके ऊपर उसको सिर्फ डायनेमिक दे दिया एंड इट्स मूविंग, बट वो कौन सा मटेरियल है, क्या फ्लैग है, कुछ नहीं पता है. सेम गोस फॉर एक टेबल लगाया उसके ऊपर एक क्लॉथ गिरा दिया. तो आई वुड से डोंट लाइक, अगर वो कर रहे हो तो उसको भी पूरे अच्छे से करो, लाइक टू योर बेस्ट. इट शुड लुक I कन्विंसिंग. think those are assignments normally हाँ that a student does during class. That should not be part of their showreel. हाँ, पर बहुत सारे शोज में वो देखने को फ्लैग सिम तो मतलब बहुत कॉमन है, बहुत. So it is. Okay, another question from Govind is that, sir, what do you feel about Blender as a software for feature effects? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. ब्लेंडर से मैं बोलूंगा बहुत पुराना वो है मेरा, बिकॉज व्हेन आई वाज इन DQ हम लोगों ने एक बार एक टाइम था जब वी वर लाइक DQ वाज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑन ब्लेंडर कंप्लीटली, तो वी डिड एन R&D ऑन ब्लेंडर. एंड दैट टाइम आई वाज इन ग्रूमिंग, तो हम लोगों ने ग्रूमिंग में काफी R&D किया था. और ब्लेंडर इज वेरी पावरफुल फॉर आई वुड से स्पेशली फॉर लाइक पीपल लाइक न्यू कमर्स एंड जो हम लोग घर पे अपना काम करना चाहते हैं, काफी पावरफुल है. और अभी तो ब्लेंडर में जो काइंड ऑफ अपडेट्स आए हैं लाइक फर को लेके, क्लॉथ को लेके और बाकी चीजों में भी, इट्स वे टू पावरफुल. एंड I'd say I love like ब्लेंडर. उसके का नोट बेस्ड जो वर्कफ्लो है, और इनफैक्ट ब्लेंडर में मैंने उस टाइम देखा था कि द फर सिस्टम इज एक्चुअली अ पार्टिकल सिस्टम. इट्स लाइक जो फर लगाते हो इट्स एक्चुअली डायनामिक पार्टिकल सिस्टम, आपको उसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता है. तो काफी इंटरेस्टिंग है ब्लेंडर, वर्थ एक्सप्लोरिंग. Priyank is asking, what are your views on Daz Studio? Have you Which used is Daz? DAZ, Daz. Daz Daz. Studio. No, sorry, I I haven't. heard about it. I haven't used it as well. Then, okay, Sayyed has a very interesting question. Sir, how do you get jobs abroad? How do you get jobs abroad? With a lot of experience, a very amazing showreel. Darshan was approached by by his current studio, and Yes. that's how over a period of time you need to have a very amazing showreel, a really good work experience, and with overtime. ऐसा नहीं है कि first job में ही आपको abroad जाने को मिलेगा. नहीं, इनफैक्ट सर टू बी ऑनेस्ट आई वुड से मतलब यहाँ पे आके मुझे भी रियलाइज होता है कि द काइंड ऑफ टैलेंट एंड एक्सपीरियंस दिस गाइस हैव, स्पेशली इन दिस बिग VFX स्टूडियोज, मतलब काफी कुछ है सीखने के लिए भी. ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बट मतलब एक क्या बोलते हैं, देयर इज अ लेवल व्हिच वी नीड टू अचीव एंड इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया और आपने कर लिया. और शोरील पॉइंट में क्या है कि मोस्टली हम लोग क्या होता है जब स्टूडियोज में काम करते हैं तो हम लोग स्टूडियो का काम निकालते हैं और उसमें उसका एक शोरील बना के डाल देते हैं, राइट. बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर पर्सनल वर्क इन इट. कुछ तो आपका पर्सनल वर्क होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर स्टूडियो वर्क. हमेशा शोरील में कुछ पर्सनल वर्क डालो आपका. जब आप जॉब करना शुरू कर दो उसके बाद आपको बाहर अप्लाई करना है फिर
Okay. अच्छा ये one of our students asking you currently Maya, you're showing Maya on screen, na? You showed the so Yes. so obviously this is Ulagesh asking, is this software downloadable? Well, it's Maya software. I think you can download a trial version, 1 month Yeah. version. Yeah. So and practice on it. So that is fine. Another person, Vivek, is asking, how was your experience at the first day of your job? First day of Your job. first day नहीं, of job. So हाँ, actually मैं बोलूँ तो first day of job सर आपके साथ ही हाँ, सर because I was in Zika and उस टाइम पे हम लोग सीख भी रहे थे और Zika प्रोडक्शन था तो मतलब and वो साथ guys, में ही हुआ I want to share this key in production. actually. Uh, he was my student, and I obviously came from a production background and working day and night. And these students, including Darshan and many others, and even the staff, had no idea in terms of what was working at nights. It was a very interesting story. I stayed 3 4 nights by myself and made them understand the culture. And once they started, and they never looked back. So everybody used to enjoy working at nights, all night, working on projects, production, 3D. We did a lot of amazing work for television ads, walkthroughs. So in his first job was like a transition from a student to a kind of Yes. production, and we really enjoyed the culture that we had at the studio, and in terms of the group we had. So teamwork is very important. Now you should help and learn from others. So that is very important. Now, in terms of communication, even if you don't have now very good communication skill, you should actually try to open up, and the others should also be more accommodable. Ki, now, if somebody's trying to communicate, somebody's trying to share his views, they should be more accommodating as well. So it was a more teamwork. We all learned together, worked together, and it was a very nice experience.